Started or not? Yeah, done. Okay, let me share my screen. Yeah, is it visible? Yes, sir. Okay, so let's begin. Landscape here. ऐसा कैसा? Yeah. Acha, so here we are going to see the interrupt programming interrupt in 8051 basically. Okay, so we will first see the interrupt structure and then we will see which are the different control registers are there which are going to govern this interrupts in 8051 and what is the use of it, and we will see the programming. Okay, so that is all the idea or the agenda for today's lecture. We have to finish all the things regarding the interrupts. Let's see how it goes. Fine. So whenever I say the interrupt, first of all, why do we need interrupt? Yes, guys, why do we need interrupt? What do you think? Why do we need interrupt? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनी माइक्रो कंट्रोलर में. Interrupt. Why do we need interrupt? अच्छा, we have seen two interrupts in 8086 ना. It is NMI and INTR. What was the use of it? Yes. What is the use of interrupt? समझो समझो समझो, मजा आएगा. बहुत सही चीज है. Why do we need interrupt? Come on. Yes. Come on guys, answer. Wrong तो wrong मगर बोलो. Why do we need interrupt? Come on ना यार. To synchronize with other devices. हाँ बोल नील. To synchronize the microcontroller with other devices according to their speed. Okay, so one use of interrupt is that whatever we have seen so far, let's see. If any other device, try to understand. Let's suppose this was the 8051. Try to understand how we are going to use this interrupts in this 8051. Okay, so let's suppose we are having any other device, okay, or anything else which actually needs some service and which can be executed by the 8051 only, or any controller. I will just generalize any controller. Okay, so for that, what can we have is that either we can have an interrupt pin. Okay, on which you can just connect the device. Fine, and whenever it is interrupted, whether MUPI or MUC will be interrupted, so that MUPI or MUC will give the service to that device. Getting it? So that is a one use. That is a one use of interrupt. So interrupt is used for what? It is actually used to interrupt MUPI or MUC. Okay, if I'm saying generalized one, then it is actually used to interrupt is what? If MUPI is doing something, okay, MUPI is performing some task, MUPI is executing some program, okay, and in between there's an emergency or something we want to execute, some other device want to execute. Okay, so just to distract MUPI from the main program to the another program which that particular device or the another one who is actually requesting for the interrupt that particular program wants to execute. So we want to execute that program. Okay, that we want to just distract the MUPI from main program to the another ISR, or you may say any other program that is normally called as the interrupt service routine. Okay, we have to just go to that, just execute and then come back to the main program. Okay, so whenever we want to whenever we are having emergency or whenever we want to interrupt MUPI or we want to solve our problem that we know that it can be solved by 8051 only. Okay, so to just give information to the 8051 ki yes, now I want your attention, just do my work and उसके बाद तुझे जो करना है कर. Okay, so for that we have used interrupt so far. Okay, for that purpose we have used the interrupt so far, but यहाँ पे अभी कैसे use करने वाले, try to understand. यहाँ पे कैसे use करने वाले. Okay, this is the one way. This is the one way of the yes, that is there. This particular purpose or this particular use will be there. Okay, in 8051. But we are having one more extra. It's like this one. Let me give you some example. Actually, interrupt to do some work. There are two ways. Either we can go with the polling mode. Okay, otherwise we can go with the interrupt mode. Okay, but if any other device want to have a service from the MUPI, okay, or we want to execute some special task, some other task which is not a part of the main program. Okay, so it can be done by the polling mode or interrupt. Now, what do you mean by this polling and interrupt? Interrupt is just like polling means what? Here the MUPI, that MUC is actually continuously asking to the device, तुझे service चाहिए क्या? तुझे service चाहिए क्या? तुझे service चाहिए क्या? Try to understand what I'm saying. Okay, what is the difference in this polling and interrupt is that? Try to understand. It's just like this one. Key in if it is in a polling mode. Okay, so it's that controller or the
process whichever will be there, it will be keep on asking to the device, तुम्हें सर्विस चाहिए क्या, सर्विस चाहिए क्या, सर्विस चाहिए क्या, सर्विस चाहिए क्या, ठीक है. So it will be just continuously monitoring this particular device, मतलब उसको requirement है क्या, fine. And अगर requirement है तो फटाक से उसको मतलब what are the services there, what are the program to execute, it will execute and it will once again go in idle, or it will just keep on checking once again उसको सर्विस चाहिए क्या करके, ठीक है. बट इफ इज इंटरप्ट, देन इंटरप्ट मोड में भी होता क्या है कि नाउ लेट्स सपोज म्यूपी विल बी डूइंग सम टास्क, वो अपना काम करेगा, ठीक है. एंड व्हेनेवर द डिवाइस वांट टू हैव सम सर्विस फ्रॉम दिस म्यूपी, देन और म्यूपी और म्यूसी, देन इट विल इंटरप्ट म्यूपी और म्यूसी, एंड देन द म्यूसी विल गो टू द प्रोग्राम, जो भी पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो करेगा और रिटर्न आएगा. समझ में आ रहा है, ठीक है. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. क्या एग्जांपल दो, या लेट्स सपोज कैसे, जस्ट लाइक दिस वन, आई डोंट अंडरस्टैंड. एक घर है, यहाँ पे भी एक घर है, ठीक है. यहाँ पे सिचुएशन क्या है, फॉर द पोलिंग मोड वेयर द न्यूबी इज एक्चुअली कंटिन्यूअसली चेकिंग फॉर कि डिवाइस को कुछ प्रोग्राम वगैरह एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, ठीक है. तो कंडीशन कैसे ले, सपोज सिचुएशन कैसे कि दिस वन इज एक बॉय का घर है, ठीक है. दिस हाउस दिस बिलोंग्स टू द बॉय, ठीक है. एंड लेट्स सपोज उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है. सो अभी व्हाट इज देयर इन अ पोलिंग मोड की, जस्ट लाइक लेट्स सपोज गर्लफ्रेंड ने सेड कि मतलब आई विल जस्ट कम अराउंड लेट्स सपोज 10:30 am, 10:30 am को आ जाऊंगी, ठीक है. बट बॉय अभी क्या कर रहे हैं, देखो, आई डोंट नो, बॉय इज वेरी क्लेवर गाय, ही इज अ टॉपर ऑफ द क्लास, ही कैन डू मेनी थिंग्स, ही कैन यूज हिज ब्रेन फॉर सम क्रिएटिव थिंग्स एंड ऑल्सो ही इज एक्चुअली द वर्सेटाइल गाय, ठीक है. बट व्हाट इज डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. गर्लफ्रेंड आने में 10:30 बजे, ठीक है. ये 10 बजे से इधर गेट पे खड़ा है, समझो, 10 बजे से मतलब यहाँ पे जस्ट डोर पे खड़ा है, ठीक है. एंड इट इज जस्ट वेटिंग, मतलब वो आ रही कि नहीं, 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 आ रही, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, ठीक है. एक्चुअली ही कैन डू लॉट मेनी थिंग्स, ही इज वेरी मच स्कॉलर, ही इज वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग क्रिएटिव एंड ऑल, ठीक है. बट नाउ व्हाट इज डूइंग इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज दैट ही जस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग, मतलब गर्लफ्रेंड आ रही कि नहीं. Are you getting it? ठीक है. Now let's suppose another case, now it will, he is just keep on checking for the girlfriend, आ रही कि नहीं, आ रही कि नहीं, आ रही कि, ठीक है. जैसी आएगी दरवाजा ओपन करेगा and he will just welcome her. Getting it? ठीक है. So this is called a polling mode, ठीक है. तो जैसे गर्लफ्रेंड आएगी उसको तो इधर वेट नहीं करना पड़ेगा दरवाजे पे, ठीक है. He will welcome directly. Fine, ठीक है. But now if I just say regarding the interrupt case, अभी interrupt में क्या होता है, देखो, अभी now once again अभी ये वो गर्ल का घर है, ठीक है. अगर लेट्स सपोज बॉयफ्रेंड आने वाला, समझो, बॉयफ्रेंड टाइम दे कि आई विल कम एट 10:30 am, ठीक है. अभी ये जो गर्ल है, व्हाट शी विल डू इज दैट शी विल बी बिजी विद सम हाउस वर्क, मतलब जो भी काम करना है, लेट्स सपोज व्हाटएवर शी वांट टू डू विद शी वांट टू डू सम एक्सरसाइज, और शी वांट टू डू सम बुक, और शी वांट टू कुक समथिंग, उसमें बिजी है, राइट. डोंट अंडरस्टैंड, शी इज जस्ट एग्जीक्यूटिंग मेन प्रोग्राम, ठीक है. अब उसने क्या किया, इधर डोर बंद किया एंड डोर पे एक इंटरप्ट रखा है व्हिच इज कॉल्ड द बेल, समझो, डोर पे एक इंटरप्ट रखा है, उसको बोलते हैं बेल, ठीक है. नाउ जैसे ही बॉयफ्रेंड आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे बॉयफ्रेंड आएगा 10:30 को, ठीक है. ही विल जस्ट इंटरप्ट दैट पर्टिकुलर गर्ल बाय प्रेसिंग अ बेल, ठीक है. ही विल जस्ट प्रेस अ बेल, ठीक है. आफ्टर शी विल वो कुछ काम करे तो मतलब इट विल, शी विल जस्ट कीप दैट वर्क असाइड, देन शी विल कम टू द डोर, इट विल ओपन एंड देन शी विल वेलकम. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. सो दैट इज व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इंटरप्ट, ठीक है. एंड दैट वाज द केस विद द पोलिंग मोड. सो अभी हो क्या रहा है इसमें, हियर दिस पर्टिकुलर गाय, और दिस इज अ म्यूसी व्हिच इज एक्चुअली कंटीन्यूअसली चेकिंग कि इंटरप्ट आए कि नहीं, इंटरप्ट आए कि नहीं, इंटरप्ट आए कि मतलब जो सर्विस चाहिए कि नहीं, आई गेटिंग इट, ठीक है. मतलब वेलकम करना है कि नहीं, ठीक है. अभी इस केस में क्या हो गया कि म्यूपी इज एक्चुअली वेस्टिंग हिज टाइम, और दिस पर्टिकुलर गाय इज एक्चुअली वेस्टिंग हिज टाइम जस्ट फॉर वेटिंग फॉर दैट गर्लफ्रेंड, ठीक है. अदरवाइज मतलब जब से वो खड़ा होता ही कुड हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव वन, ठीक है. कुछ पढ़ सकता था, कुछ कर सकता था, बट नहीं, टाइम वेस्ट कर रहा है इधर, ठीक है. आई यू गेटिंग इट? हाँ, बट इसका एक फायदा कि जैसे गर्लफ्रेंड है उसको फटाक से वेलकम करेगा, देयर वोंट बी एनी डिले, ठीक है. बट इन केस इन दिस पर्टिकुलर व्हाट इज हैपनिंग इज दैट गर्लफ्रेंड ने डोर बंद किया, हाँ, जस्ट बेल चालू करके रखा, मतलब इंटरप्ट को अनेबल करके रखा है, एंड शी इज डूइंग इट्स मेन वर्क, मतलब जो भी काम कर रहा है वो कर, मतलब जो मेन, मतलब म्यूपी जो मेन वर्क कर रहा है वो कर रहा है. Are you getting it? ठीक है. एंड जैसे अभी बॉयफ्रेंड आएगा, he will just press this bell, ठीक है. he will just create an interrupt by this bell, ठीक है. that will be listened by this girlfriend, ठीक है. अभी ये जो काम रहेगा वो she will just keep it there only, ठीक है. she will go to the door open करेगी, उसको वेलकम करेगी, and once again she can resume back to the main work. Are you getting it? हाँ, बट यहाँ पे क्या होगा, अभी जो मतलब जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो अभी इधर आया है, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम टू, मतलब शी विल कम टू द डोर, देन शी विल ओपन, एंड देन शी विल वेलकम टू दिस पर्टिकुलर गाय, ठीक है. तो यहाँ पे सर्विस फास्ट मिलेगा और यहाँ पे सर्विस स्लो मिलेगा. बट यहाँ पे यूपी कैन यूटिलाइज, यूपी इज नॉट यूटिलाइजिंग टाइम फॉर क्रिएटिव थिंग, जस्ट टाइम पास कर, जस्ट वेटिंग में,
Okay, and here the MUPI or MUSI can utilize time for some major work, not for just keep on checking ki interrupt aaya ki nahi, aaya ki nahi, aaya ki nahi. Okay, so that is what's the difference in the polling mode and interrupt mode. Have you understood? Is that clear? Yes or no? Yes. Okay, so that is what the use of interrupt you'll be seeing over here. कि MUPI कुछ तो काम, because why I'm saying this one, because in timer, what we have done in timer, that timer I don't understand. Okay, after that we used to load the count in TH and after that TR1 timer को चालू कर देते. उसके बाद क्या करते थे? What do we do after this one? Yes, what do we do after? Shit. What do we do after this one? Yes, timer in timer program. Come on, guys, answer. What do we do after this one? Clear. Sorry? GNB कुछ तो करते हैं ना. GNB क्या है? याद है? Time programming. GNB what? Come on. We just keep on checking this JNB TF flag ना. अगर TF से लेगा तो TF. We can just say here. So what is what is MUSI doing over here? Just continuously checking TF flag one हुआ कि नहीं, one हुआ कि नहीं, one हुआ कि नहीं, one अगर नहीं है तो फिर इधर टाइम पास कर रहा है ना. ठीक है. अच्छा, MUSI कुछ खास काम कर रहा है क्या इधर? No. Is MUSI really awesome? No. बहुत भारी काम कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे कर रहा है, just wasting his time, nothing else. Are you getting it? Are you getting it? Just keep on checking similar ये मतलब polling वाला, this is called the polling mode. Try to do this, then you will understand. ठीक है. यहाँ पे just boyfriend है जो भी मतलब just keep on checking गर्लफ्रेंड आएगी नहीं, गर्लफ्रेंड आएगी नहीं, वही काम कर रहा है ये इधर. ठीक है. टाइम वेस्ट कर रहा है. Could have done something more, but नहीं कर रहा है, इधर टाइम वेस्ट कर रहा है. This is what is happening over here in the polling mode. ये पे टाइम पास कर रहा है. टाइम पास नहीं कर रहा है. He is actually wasting his time. I will not say time pass. Time pass मतलब जानबूझ के किया जाता है. ठीक है. But here just wasting his time, nothing else. Are you getting it? ठीक है. So instead of this one, if you can do something like कि मतलब मैंने चालू किया टाइमर और उसको छोड़ दिया, उसके बाद अगर आई विल जस्ट आस्क म्यूसी और म्यूसी कि तू जो काम करना है कर ले आगे का. ठीक है. जैसे टीएफ ऑन हो जाएगा, जैसे टीएफ ऑन हो जाएगा आई विल इंटरप्ट यू. जैसे टीएफ ऑन हो जाएगा आई विल इंटरप्ट यू. अगर ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा तो देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर टाइम जो इधर टाइम वेस्ट कर रहा है, दैट वी कैन यूज इट फॉर समथिंग एल्स. ठीक है. एंड लेट्स सपोज इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टाइमर टू जनरेट अ स्क्वायर वेव एंड ऑल, देन what do we do? We just say कि JNB TF0, then उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी है उसके बाद वो क्लियर आ, एंड वंस अगेन वी जस्ट कीप ऑन जंपिंग ओवर हियर. ठीक है. ये सेट करके फिर से इधर ही आते हैं. ठीक है. मतलब पूरा यूपी मतलब ये टाइम पूरा का पूरा वेस्ट करेगा जिस स्क्वायर वेव बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं करे. ठीक है. इफ आई एम यूजिंग अ पोलिंग. ठीक है. बट इफ आई डू द सेम थिंग बाय यूजिंग इंटरप्ट वाला मोड, तो ये चीज टाइम पास कर रहे हैं ना अपन, यूपी जो वेट कर रहा है पकड़ में. ठीक है. एट दैट टाइम म्यूजिक और म्यूजिक कैन डू सम अदर. ठीक है. एंड टू यूटिलाइज म्यूपी का टाइमिंग एफिशिएंटली एंड टू और यू मे से दैट टू डू सम मल्टी फंक्शन और मल्टीटास्किंग विल बी यूजिंग अ इंटरप्ट. आर यू गेटिंग द यूजेस ऑफ इंटरप्ट? कहां पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? इज दैट आइडिया क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है. सो नाउ इन दिस 8051 वी आर हैविंग 5 इंटरप्ट. सो लेट्स गो फॉर इट. ठीक है. नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट विद एक्चुअल वाला thing. Here I will just explain you the concept, मतलब करना क्या हमने को just idea. ठीक है. Now here let's see. So in 8051 we are having 5 interrupt. ठीक है. Which are the simple the categories are like this one. First we are having the hardware pins on which we can get the interrupt, that is INT0 and INT1. ठीक है. These are the two actual the interrupt is dedicated interrupt pins are there. ठीक है. Then third one is that the interrupt may be generated because of the timer 0. Okay. Fourth one is interrupt can be generated because of the timer 1, and the fifth one is that interrupt may be generated because of the serial communication. Are you getting it? Interrupt can be generated because of the serial communication. Okay. Now keep in mind in serial communication actually we are having a two interrupt. There is a TI and RI. Yes. सिग्नल गया था. Yes, sir. Okay, ठीक है. So in serial communication, actually we are having two different interrupt, that is a TI and RI. ठीक है. But combinedly we are just using only one interrupt for the serial communication. ठीक है. For TI and RI will be using only same interrupt.
Getting it? ठीक है. So total in 805 we are having 5 interrupt. Actually reset करके भी होता है, वो भी एक interrupt होता है, but ठीक है. We will just consider this 5. This is given in a book. ठीक है. So 805 में we are having a 5 interrupt. First the INT 0, then INT 1. These are what the hardware pieces are there on the port number 3 that we have seen in a pin diagram. ठीक है. Here we can the interrupt. Then we are having an interrupt which is generated because of the timer. ठीक है. Because of the take care, there is a timer 0 and timer 1. Okay, and we are having another interrupt which is generated because of this serial communication. Interrupt music, that is 805. Getting it? Okay, so these are the 5 interrupts which are there. Now to handle this 5 interrupt, we are having 2 registers, that is IE and IP. Let me see, I do have it over here or not. Yeah. So these are the interrupt. Can you see the PPT? Yes, sir. Okay. Okay. So these are the interrupt. As I told, we are having INT 0 here. Okay. Then INT 1, then timer 0, timer 1, and serial communication. Okay. And as I told, we are having reset also. Fine. So now try to understand what is happening is that. So these are the 6 actually 5 interrupts. This are mainly we will be considering. Okay. Reset one is resetting interrupt. Whenever I reset it, जो भी ROM का location will be the 0, 0. It will reset. Getting it? Okay. And for this reset, we are having, yes, we are having a hardware pin, which is then the 9. Fine. Then for the INT 0, so we are having the pin, which is pin 3.2. Okay. And for the INT 1, we are having a pin, which is a pin 3.3. And we do not have a interrupt pin for the timer and timer 1. Try to understand that T0 and T1 pin, which are having, they are not for the interrupt, they are actually for the input supply. Whenever we are using timer as a counter, samjho, keep the things clear. Okay. We do not have a pin for timer and timer as well as serial communication interrupt. Whatever we are having, that T0 and T1 pin, which are there on the port number 3, they are for applying some signal which we want to count. Whenever we are using a timer as a counter, in that case, we need an external signal that can be applied over here. But on this INT0 and INT1, yes, actually we can have some interrupt signal. Some difference. So that's why for the timer, here it has not shown that pin which is available. So this was created by the software only. Okay, or by TFLab. ठीक है ठीक है. And serial communication का interrupt will be created because of this RI and TA. समझो अभी. ठीक है. So once again, now here this one is a priority. They are just listed like priority wise. मतलब किसको first priority मिलेगी. ठीक है. So first one is always reset. उसके बाद आप priority will be given to the INT 0. This will be having a priority. ठीक है. Then the next priority will be for the timer 0. And the next one will be for the INT 1. Next one will be for the timer 1, and then for the serial communication. Okay. So if I just list this priority wise, so first priority goes to the INT 0. ठीक है. Reset है, reset को भूल जाओ फिलहाल तो. INT 0. Second one will be given to the timer 0. Third one will be given to the INT 1. Fourth one will be given to the timer 1, and the fifth one for the serial communication. Are you getting it? So this is how that the interrupts are prioritized. Fine. Now what do you mean by priority? If I'm giving this priority, what's the use of this priority? Yes. Why do they have a priority? And अगर priority नहीं रहेगा तो? Yes, come on. What is the use of priority? If I do not give the priority, then, and if I'm giving it, then फर्क क्या है दोनों में? अच्छा पांचों इंटरप्ट साथ में आ गए. ये सबने इंटरप्ट दिया 805. तो अभी if 805 get interrupt because of all these 5 sources, then The most important one should be executed. yeah. Now here the priority will come in picture. So whenever you are having a more than 1 or 2 interrupts, then in that case you should. I get it. Okay. Actually, in this INT1, we are having a priority that INT0 is having a higher priority and INT1 is having a lower priority. Yeah. And we are having the rest of the interrupts as well. ठीक है. So ठीक है. So to resolve that, we are having the priority. अगर पांचों साथ में है तो पहले INT0 को सॉल्व कर. उसका काम हो तो फिर टाइमर 0 के पास जा. इसका काम हो तो INT1 के पास जा. उसका काम हो तो टाइमर 1 के पास जा. अगर इसका भी काम हो तो फिर सीरियल कम्युनिकेशन होगा. ठीक है. लेट्स सपोज इंस्टेड ऑफ दिस मतलब देयर एक्टिविटी एट अ टाइम. ठीक है. लेट्स सपोज टाइमर 0 और सीरियल कम्युनिकेशन, ये तो इंटरप आ गए 801 के पास. तो what will happen in that case? Let's suppose ये तो इंटरप एक्टिवेट हो
timer serial or serial communication. So who will get the service first? Yes, timer and serial communication. These are the two interrupt which approaches to the 8051. Now, come on guys, answer fast. मुझे बहुत कुछ cover करना है. Now, this timer serial obviously is going to get a higher priority. This is a higher priority than the serial communication. So this will get the service first, and उसके बाद serial communication को. ठीक है? Now let's suppose this. ठीक है? दोनों ने साथ में अप्रोच किया. ठीक है? But I know as a I serial communication का interval actually important. इसको priority देना चाहिए. Try to understand. टाइमर का टेक्स्ट. ठीक है? अब इस टाइम पे क्या करेंगे फिर? Are you getting it? Hello, are you there? Yes. Yes. Okay, ये बीच में क्या प्रॉब्लम आता है समझ में नहीं आता, मुझे डिस्कनेक्ट बोलते हैं, फिर लगता है मुझे. ठीक है, लेट इट. या ठीक है. सो नाउ सपोज आई नो कि सीरियल कम्युनिकेशन का इंटरप्ट इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट सम इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैव टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड डिवाइस, एंड वो जाना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो एट द टाइम टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी आर हैविंग टू रजिस्टर्स, दैट इज आईई एंड आईपी. समझो अभी ये दो रजिस्टर्स हैं. मतलब उसके लिए एक्चुअली टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ दिस वन वी आर हैविंग आईपी, एंड बिफोर दैट वी सी व्हाट इज यूज ऑफ आईई, दैट इज इंटरप्ट. ठीक है. So let's see these two registers. Let's see. So to control the interrupt, उनका priority and all, we are having these two registers. There's a IE and IP. Yeah. So this one is a IE. समझो अभी IE क्या चीज़ है. ठीक है. So IE is a interrupt enable register. It's a interrupt enable, and which is the bit addressable. Means what? We can just go to the each and every bit of it, and we can set or reset. ठीक है. अभी इसमें कैसे once again is of 8 bit. समझो is of 8 bit. ठीक है. इससे D0 D7 8 bit का है. ठीक है. अभी here we are having bit, that is the interrupt enable bit for all the 5 interrupts. Are you getting it? All the 5 interrupts, they are like this one, that EX0, it is for the external interrupt 0, that is the INT0 के लिए. This bit is for the INT0. ठीक है. इनका काम क्या है मैं समझो, पहले वो रजिस्टर समझो क्या है. So IE is one register which is called the interrupt enable register, which is of 8 bit, and it is a bit addressable. Now let's see which are the bits there inside. Fine. So for all the 5 interrupts we are having dedicated bit, we are having dedicated bit to enable it, interrupt को enable करना एक different thing होता है. Getting it? ठीक है. So the 5 bits are like this one, EX0 here. ठीक है. इसको pointer कैसा करते हैं? Let it be. ठीक है. I will just choose by hand, then you will understand. Yeah. ठीक है. So this is EX0. This is for what? INT0. ठीक है. Then this AT0. This is for the timer 0. E means what? Enable this particular interrupt. Enable external interrupt. Enable timer interrupt. Enable external interrupt. Enable timer interrupt. Enable serial communication interrupt. And enable timer to interrupt. This is what is that E का meaning is. ठीक है. So EX0. This is for what? To enable INT0 का interrupt. To enable INT0 का interrupt. ठीक है. This 80, this is for what? To enable timer का interrupt. और मुझे करना है, as I told, for each interrupt we are having a dedicated bit over here. ठीक है. And this bit will decide whether that interrupt is enabled or not. Whether that interrupt is enabled or not. Are you getting it? ठीक है. If I just keep 1 over here, then that particular interrupt will be enabled. If I keep a 0, that particular interrupt will be disabled. ठीक है. Interrupt disable मतलब क्या? जैसे मतलब as I told in this particular case, ये घर वाले केस में. ठीक है. यहाँ पे here this particular girl is actually working in a interrupt farm. ठीक है. अगर इसको let's suppose ये बॉयफ्रेंड का इंटरप्ट डिसेबल करना है, तो फिर ये क्या करेगी? ये जो बेल का अंदर वाला बटन है, मतलब एक्चुअल वाला बटन, उसको बंद रखेगी. तो दो द इंटरप्ट इज देयर, दैट शी विल नॉट वेलकम दैट गाय. गेटिंग इट? ठीक है. तो दैट इंटरप्ट अनेबल आई एम टॉकिंग अबाउट. समझो, दैट इंटरप्ट अनेबल आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. मतलब वो उसका बटन चालू करना है कि नहीं. ठीक है. So these are the buttons for the interrupt, that individual interrupt. ये external interrupt 0 के लिए, that INT0 के लिए. This is for the timer 0. This is for the external interrupt 1. This is for the timer 1. This is for the serial communication. And in some controllers in higher 8051 families we are having a timer 2 also. तो ये उसके लिए. तो अपने केस में ये यूज नहीं होगा. ठीक है. And this is the EA. EA means what? This is enable all. Now this was the main switch for all this interrupt. अगर ये बंद देना तो इनका कुछ काम ही नहीं है. समझो I क्या रजिस्टर है. Okay, so I is once again interrupt enable. It is of 8 bit, and it has that dedicated bit for each and every interrupt to enable or disable it.
Fine. So what are they? Just like this one. So D0 से चालू करना है, and you have to just put it priority wise. So first priority is goes to the EX0. Then is the AT0, then EX1, AT1, ES, that is serial communication, then AT2, then this one is the reserved or a blank, you may say, or don't care, okay? And then we are having EA. So EA is the main switch for all this. Huh? अगर EA मैंने इधर 0 किया है, इधर मैंने 1 रखा, तो भी किसी को भी इंटरप्ट को सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है? Are you getting? So EA is a disable all interrupt. You can see over here, EA is a disable all interrupts. ठीक है, और enable all the interrupts, ठीक है? If I make it 0, so all the interrupts are disable. If I make it 1, तो all the interrupts are enabled. ठीक है, अच्छा, what do you mean by disable is what? मतलब whenever I make it 0, whenever I make it 0, EA is equal to 0. Try to understand, try to just clear the concept because वो बहुत important है, ठीक है? मैंने EA 0 किया, so timer 0 इंटरप्ट नहीं दे सकता क्या? What do you think? If I made this EA is equal to 0, then what do you think? That timer 0 will not get service. EA मैंने 0 किया, this was the enable all. अगर इसको मैंने 0 किया, ठीक है? So what do you think? Timer 0 को सर्विस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, आई एम जस्ट टेकिंग केस फॉर दिस टाइमर 0, इसको सर्विस मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर इसका इंटरप्ट आया, अगर इसका, हाँ मिलेगा, मिलेगा कैसा? अगर मैंने EA को 0 किया, मगर EA को मैंने 0 किया, ये मतलब अनेबल ऑल, उसको मैंने डिसेबल करके रखा है, अगर 0 किया तो फिर डिसेबल होते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद जैसे मतलब आई एम आस्किंग कि अगर EA को मैंने 0 किया है तो AT0 को सर्विस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? समझो समझो, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है. यस और नो? रॉन्ग तो रॉन्ग बोलो. नहीं मिलेगा. या ठीक है, एक्चुअली नहीं मिलना चाहिए, बट किस केस में नहीं मिलेगा समझो. If we are doing in this interrupt वाला मोड ना, तो in this case it will not 8051 will not give service to the timer 0. समझो interrupt वाला मोड रहेगा तो, ठीक है? हाँ, but if it is a polling mode and तूने ये बार को 0 करके रखा है, तो यहाँ पे तो सर्विस उसको मिलना ही मिलना है. समझो what I'm saying, ठीक है? It's just like this one कि if I'm just doing like this one, मतलब if in the program if I'm just writing the instruction that JNB TF0, मतलब वो इंटरप्ट को मैं कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा हूँ, आया कि नहीं आया कि नहीं, बिकॉज वी नो जब टाइमर ओवरफ्लो होता है तब जाके टीएफ को 1 करता है. मतलब दिस इज वन काइंड ऑफ इंटरप्ट फॉर अ टाइमर. मतलब टाइमर 0 का इंटरप्ट एक्चुअली कौन जनरेट करने वाला है? TF0, ठीक है? इफ आई एम इन पोलिंग मोड तो वो एक्चुअली ये का कुछ जरूरत ही नहीं है, समझो, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इधर मतलब फिर ये अनेबल है डिसेबल मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता इफ यू आर इन अ पोलिंग मोड, ठीक है? मतलब कैसा, अगर ये मतलब ये वाला सिचुएशन, इधर बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड के लिए वेट कर, ठीक है? उसने अंदर का मतलब जो बेल का बटन अंदर से बंद किया है चालू किया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना, बिकॉज वो खुद इधर खड़ा है. आर यू गेटिंग इट? समझो, ठीक है? सो इफ द टाइमर 0 इज एक्चुअली गेटिंग अटेंशन ऑफ द 8051 बाय द पोलिंग मोड, ठीक है? पोलिंग मोड मतलब हियर, मतलब वी आर राइटिंग JNB TF0, मतलब कंटिन्यूअसली चेक कर रहा है, तो उधर ये इंटरप्ट अनेबल चालू है नहीं है बंद, फर्क नहीं पड़ता मुझे. समझ में आ रहा है क्या? सो इन दैट केस यूपी इज गोइंग टू सर्विस बिकॉज वो खुद कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है कि 1 हुआ कि नहीं, 1 हुआ कि नहीं, 1 हुआ कि नहीं, ठीक है? हाँ, बट इफ इट इज इन इंटरप्ट मोड, इफ इट इज इन इंटरप्ट मोड, मतलब इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, JNB में इंस्ट्रक्शन मतलब जस्ट टाइमर को चालू करके मैंने छोड़ दिया, एंड इफ आई एम राइटिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, ठीक है? इफ आई एम नॉट राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, देन इन दैट केस दिस EA विल मैटर. समझो समझो, फंडा समझो, इन दिस केस EA विल मैटर, ठीक है? एंड अगर इधर EA 1 है तो टाइमर को सर्विस मिलेगा जब TF0 अपने आप 1 होगा तो, ठीक है? विदाउट राइटिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट. इंटर का मनी क्या है, ठीक है? हाँ, अगर मैंने EA को 0 करके रखा है तो फिर TF1 भी हुआ तो भी इसको सर्विस नहीं मिलेगा इफ इट इज नॉट इन अ पोलिंग. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? कम ऑन टेल मी यस और नो, बस ये फंडा सब क्लियर होना चाहिए. यूपी इज ऑल अबाउट फंडास, यूपी एंड म्यूजिक. हैव यू अंडरस्टूड? EA बार कब मैटर करेगा, Yes. ठीक है? इट्स नॉट EA बार इज EA, एक्चुअली EA बार अलग होता है, EA अलग होता है, ठीक है? दिस इज अनेबल ऑल है. फाइन. सो व्हेनेवर वी आर एक्चुअली यूजिंग इंटरप्ट मोड ऑफ द यूपी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट, तब जाके ये मुझे मैटर करेगा. हाँ, अगर पोलिंग मोड में तो फिर ये मैटर नहीं करता मुझे, समझो, ठीक है? मतलब ऐसा वाला केस है तो इधर बेल है नहीं है, बेल चालू है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता. बट इन दिस केस यस, बेल चालू है कि नहीं फर्क पड़ेगा. अगर बेल अंदर से बंद है तो फिर ये बंदा बाहर ही रहेगा, अंदर कभी नहीं जाएगा. getting it? अगर बेल बंद रहेगा तो fine. So that is what the case, ठीक है? So come here once again. So this EA bar will matter first of all whether we are using that interrupt mode or not. polling mode है कि interrupt mode है? polling mode मतलब अगर मैं specifically वो particular interrupt में monitor कर रहा हूँ कि आया कि नहीं आया कि नहीं आया कि नहीं, उसको polling बोलते हैं, ठीक है? and अगर मैंने just interrupt को चालू करके छोड़ दिए, ठीक है? and in that case if you want to service, then हाँ, in that case this EA will matter. Fine. So EA is the main switch for this all the interrupts. इनको चालू करना है कि नहीं करना, इन इंटरप्ट वाला केस, नॉट इन पोलिंग वाला केस. once again I'm just clearing it. Fine. So these are the interrupt bits once again. EX0, that is for the, you can see over here, EX, that is for the external interrupt 0. Then AT0 here it is given.
that is for the timer 0 and likewise. ठीक है, तो इनको चालू करना है तो 1 रखो, fine. But main thing is that किधर गया, yeah, main thing is that if you want this to get in action, तो उसके पहले EA बार होना चाहिए, sorry EA बार नहीं हो, EA this should be the 1. अगर ये 1 नहीं है तो फिर 0 रख 1 रख कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, because ये main switch है इन सबका. Fine. So this is all regarding the IE register. So once again, interrupt enable. This is actually used to enable that interrupt. मतलब interrupt mode में उसको service देना है कि नहीं देना है. That will be decided by this IE register. Understood? फटाफट बोलो yes or no. Yes, sir. ठीक है. उसके बाद now we are having IP. IP किधर है यार? Yeah, you can just consider this particular example. Let's say एक example देखते हैं फटाफट. So they are asking show the instruction to enable serial interrupt. Serial को चालू करना है. Timer 0 interrupt and external hardware interrupt. इनको चालू करना है. ठीक है. And disable or mask timer 0 interrupt. Then show how to disable all the interrupts with a single instruction. ठीक है. So there are the 3 part. पहला क्या करना है? A part में we have to just enable serial interrupt, then timer 0 का interrupt and external hardware का interrupt. External hardware interrupt 1. ठीक है, जैसे A part. तो उसके लिए क्या करेंगे? So if you have to enable that, so you just go to the register. मतलब कौन सा भी मतलब अगर इंटरप्ट अनेबल करना है तो इसको पहले 1 रख, फाइन. उसके बाद जो भी इंटरप्ट बोला है दैट इज टाइमर 0 एक्सटर्नल 1 जो भी है उसको जस्ट 1 कर एंड बाकी सबको 0 कर, खत्म. फाइन. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. सो यू कैन सी ओवर हियर. सो इज आई व्हाट दे हैव सेड कि अनेबल द सीरियल, पहले इंटरप्ट अनेबल करना है तो इधर का जो ईए बिट उसको 1 किया मैंने, फाइन. उसके बाद वी वांट टू अनेबल दैट सीरियल इंटरप्ट. सीरियल इंटरप्ट मतलब वो बिट यहाँ पे है, that is 1. ठीक है. उसके बाद टाइमर 0 का बिट यहाँ पे, so I just made it 1 and external hardware interrupt 1. तो external hardware interrupt 1 यहाँ पे, तो उसको मैंने 1 किया and बाकी जो भी बचे वो इनको 0 किए. Fine. So this is what this is the instruction. Whenever the move IE comma this particular pattern, so this will happen. The serial interrupt, timer 0 का interrupt and external hardware interrupt 1 that will be enabled and बाकी जो भी बचे हुए that will be disabled. Okay, so we can just do it by using this one, that move I comma. Why? Because I is a bit addressable, and when I say the bit addressable, it is by default byte addressable as well. Getting it? मतलब जो भी रजिस्टर है byte addressable है ही, but उसका स्पेशलिटी की bit addressable भी है. ठीक है. उसके बाद next way. Now this is the one way to enable the things. Otherwise you can just do like this one. Set B IE7, set B IE.4, set B IE.1, set B IE.2. ऐसा भी कर सकते. So this is what the bitwise approach, and this was the bytewise approach. ठीक है. So this will also do the same thing. Are you getting it? So this is to show that this IE register is a byte as well as bit addressable. Fine. Okay. So this is what we can by using this either this particular instruction or this 4 instruction we can just achieve this particular A wala task. Okay. Now the B is what disable timer 0 interrupt. Disable timer 0 interrupt. Okay. Now whenever I just want to clear only one interrupt, then in that case obviously I will go with the bitwise instruction. So here timer मुझे 0 का interrupt disable करना है. So I will just say CLR I.1. ठीक है. Why I.1? Because the first bit जो भी है ये वाला bit, this is the first bit which is for the timer 0. So I will just say CLR I.1. Otherwise you can say the CLR 80 also. कुछ भी चलता है उसके ये particular नाम से पुकारो, otherwise position से पुकारो. ठीक है. One and the same thing. It will just change the same bit. Right? So either you can call it by using the position. Position means what? This is the I.0, I.1, I.2, 3, 4. So these are called the positions. Okay? Otherwise, you can just call it by using the name also. So either I may write the CLR 80 or CLR I.1. दोनों भी चले. ठीक है? So likewise, we can just disable it. ठीक है? And last they are asking show the instruction to disable all the interrupt. अगर सबको करना है तो फिर I'll just clear that I वाला EA वाला bit which is at the 7th position. तो सभी disable हो जाएंगे. Fine. So this is how we can just play with the IE register. Then now as I raise this particular question, if there are 2 interrupts from the timer 0 and serial, let's see. समझो अभी थोड़ा सा. ठीक है. If there are 2 interrupts from the timer 0 as well as serial. ठीक है. And I know कि ये वाला काम important है. But by default the priority for the T0 is higher than the serial communication. तो in by default mode this T0 will get service first and उसके बाद serial को मिलेगा. But if I want the serial communication interrupt must get service first and then T0, then in that case to help we are having IP register which is called the interrupt priority. ठीक है. There is IP. Yes. I'm not getting it. I will draw it.
Unknown page. That is a better thing. नहीं हुआ था मुझे. ठीक है. So we are having another reason which is called IP. Now that IP is for interrupt priority. समझो अभी इसका काम क्या समझो. अभी ये भी important है. फंडा है इसमें भी. ठीक है. Third page. I hope you all are getting it. Okay, so now we'll see that IP. So IP is the interrupt priority. Now once again this one is of 8-bit. Fine. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है. इसमें ये दो don't care है. अब ये this is a P2 here we can write that let's suppose PX0 that is INT0 के लिए, then PT0 timer 0 के लिए, then PX1 that is for the this one interrupt 1, then PT1 and then we are having a PS. Fine. So this was the priority. ठीक है. P that stands for a priority. अभी इससे क्या होता है? Try to understand. ठीक है. Now here once again this is the bit, single bit. So either it can take a 0 or 1. ठीक है. It will either take a 0 or 1. अभी इनका मीनिंग क्या है समझो. Now this is very important. ठीक है. So now so if this particular interrupt का bit जो भी whether it's of INT 0 timer 0 जो भी interrupt है. ठीक है. उसका अगर priority में अगर bit 0 है so it will have a normal priority. ठीक है. बट अगर इधर पर्टिकुलर बिट इज 1 देन इट विल हैव अ हाई प्रायोरिटी. समझो 0 मींस व्हाट नॉर्मल प्रायोरिटी एंड 1 मतलब हाई प्रायोरिटी. आर यू गेटिंग इट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो दिस इज द आईपी रजिस्टर. दिस इज द इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर. फाइन. एंड इन दिस केस वी आर हैविंग द प्रायोरिटी बिट फॉर ईच एंड एवरी इंटरप्ट. समझो अभी. अब इनका मीनिंग क्या है? एज दिस इज द सिंगल बिट either it can take a 0 or 1. If it is a 0 it will take a normal priority. If it is a 1 it will have a higher priority. Are you getting it? Now in our case what I want, let's suppose there are interrupt from the T0 and serial communication. There's an interrupt from the timer 0 and serial communication and I want serial communication का interrupt to execute first. तो फिर क्या करूं? Then what should I do? Then I have to go to the IP register and I have to make this particular bit as a 1. ये जो serial communication का जो भी dedicated bit है, I have to just make it as a 1. ठीक है. Is everyone understanding मैं क्या बोल रहा हूँ कि just attendance के लिए 70 people are there. Is everyone getting it? What I'm saying? Yes. एक ही बंदे का आवाज है, बाकी क्या करते हैं पता नहीं. Okay, thank you. Yeah, ठीक है. So now if I want that serial communication का interrupt to get a first service, then I will go over here and I will just make this particular as a 1. PS को as a 1 करूँगा. ठीक है. So let's suppose if this PS as a 1, then what will be the priority order? If I make this PS bit as a 1, ठीक है. तो priority order जो मैंने 1 2 3 4 5 देखा था वो कैसे रहेगा अभी? In which sequence the MIPI will solve the interrupts if all are there? If I just go to the IP and if I just make this PS is equal to 1, तो ये PS का जो bit है उसको मैंने 1 किया. ठीक है. अभी interrupt का वो priority बोलो कैसे रहेगा? Anyone? First will be the highest priority will be go to whom? Which interrupt? Come on. Yes, highest priority will be given to what? Given to whom? Normally it is like this one. That is INT 0. Then we are having a timer 0. Then we are having INT1, then T1, and then we are having a serial communication. Okay, but in this case, what I have done is that I have just made this PS bit as a 1. तो अभी इंटर प्रायोरिटी कैसे रहेगा? Come on. मैंने PS को 1 करके रखा है. ये प्रायोरिटी में जाके इंटर प्रायोरिटी में जाके उसको 1 किया ये पर्टिकुलर बिट को. तो अभी इंटर प्रायोरिटी कैसा रहेगा? Which one will be at the first? That higher priority? Yes. Come on यार. I have given enough explanation. इसको मैंने 1 किया मतलब what? Now this this serial communication वाला interrupt will have a higher priority ना? तो first पे कौन आएगा? First priority किसको देगा? SC. It will give the serial communication. उसके बाद next second पे कौन रहेगा? T1. No, now it is going to be the INT0. अब ये normal जो भी sequence है उसको follow करेगा. ठीक है. पहले देखा किसको 1 है उनको टॉप पे लेके आएगा. ठीक है. एंड बाद में जो भी नॉर्मल बचे उनको लेके आएगा. Are you getting it? Then the priority will be like this one. Now this is the by default priority, but if I just change something with the IP register, then it is going to be like this one. Try to understand. First will be the serial communication because here we have made this particular bit as a 1. Then INT 0, then T0, then INT1 and then T1. समझ में आ रहा है क्या? Now this is going to be the priority in this particular case. ठीक है. एंड अगर ये दोनों इंटरप्ट आए then we just check कि अभी प्रायोरिटी क्या है. हाँ ऐसा है ना. तो फिर सीरियल कम्युनिकेशन विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी, सो इट विल गेट सॉल्व फर्स्ट एंड उसके बाद ये T0 होगा. ठीक है. गिवन कि INT0 पे इंटरप्ट नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. नाउ लेट्स सपोज इफ आई डू लाइक दिस वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इधर भी मैंने 1 किया और ये जो
px1 है उसको भी मैंने 1 किया, अब प्रायोरिटी कैसे रहेगा? अब प्रायोरिटी कैसे रहेगा? मैंने ps and px1, now it's not कि मतलब we can just make only one bit inside this particular IP register as a 1, no, we can make all the pins as a, all the bits as a 1. सबको अगर 1 करेंगे तो मतलब नहीं, तो फिर यही होगा फिर से, ठीक है? पर समझो मतलब इट्स नॉट कि हार्ड एंड फास्ट वी जस्ट ओनली मेक दैट वन बिट एज अ 1, मतलब वन पर्टिकुलर बिट एज अ 1, नो, इट्स नॉट द केस, वी कैन जस्ट मेक ऑल द बिट्स एज अ 1, नो प्रॉब्लम, ठीक है? नाउ लेट्स सपोज these two bits are 1, ps as well as px1, px1 is for the int1 and this is for the serial communication, ठीक है? these two bits in the IP registers are 1, then what will be the priority? Then how the priority will be given to the interrupts? First we'll be having to whom, to which interrupt? First priority will go to T1. sorry T1. T1 की x1 stand for external interrupt, ये T1 अलग है, x1 is for the external interrupt, that is int1. Yeah, now let's see. Now the first of all MIPI will go to the IP, किसमें इधर कुछ 1 है क्या देखेगा, बाद में देखा इन दोनों मतलब these are the two races which are the 1, तो अभी इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देगा? First this को ना, because this is मतलब by default this one is having the highest priority, ठीक है? So that's why the first priority will go to the int1, समझो, ठीक है? Then it will go to the serial communication and then it will go अपना जो by default वाला देखेगा, अगर ये सब 0 है तो, समझा क्या? ठीक है? देन उसके बाद आएगा int0, देन उसके बाद आएगा t0 एंड देन उसके बाद आएगा t1, समझा? अंडरस्टूड? Yes. ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, बिकॉज़ ये जस्ट बुक पढ़ के नहीं समझने वाला है गाइस, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पेन टू एक्सप्लेन दिस वन, अदरवाइज आई कुड हैव सेड लाइक मतलब इंटरप्ट का पार्ट आप खुद से कर लो, बिकॉज़ मुझे पता नहीं है जमेगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द आईई एंड आईपी रजिस्टर, हैव यू अंडरस्टूड? समझा है आईई एंड आईपी कैसे काम करते हैं? Yes. ठीक है? नाउ विल गो टू द प्रोग्रामिंग, बिकॉज़ प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंट, हां, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो दिस फंडास, ये इंटरप्ट का काम क्या है, कैसे है, सब पता होना चाहिए, मतलब दिस इज व्हाट इज अवेलेबल ओनली इन व्हेन वी आर यूजिंग दैट इंटरप्ट वाला मेथड, नॉट अ पोलिंग वाला मेथड, पोलिंग वाला रहेगा तो फिर उसमें खुद न्यूसी बीसी चेक करने के लिए उसको सर्विस चाहिए कि नहीं, बट इन इंटरप्ट दैट अगर किसी को सर्विस चाहिए ही विल जस्ट आस्क टू द म्यूपी और म्यूसी की बाबू मुझे सर्विस दे करके, ठीक है? सो नाउ दिस इज ऑल रिगार्डिंग द आईई एंड आईपी रजिस्टर एंड द इंटरस्ट्रक्चर ऑफ 8051, नाउ इज द प्रोग्रामिंग, अभी प्रोग्रामिंग कैसे देखो, प्रोग्रामिंग शैल आई टेक इट, स्लाइड में लगा तो नहीं समझेगा आप लोग, yeah, let's see, I will just do it on board only so that it will be clear to you. अगर मैं स्लाइड में अगर लूंगा तो फिर आपको ज्यादा नहीं समझेगा. So keep in mind interrupt का method we normally use whenever we want to do the multitasking, मतलब बहुत सारा काम करना है तो उस टाइम पे अपन interrupt यूज करेंगे, so that is the best thing actually, ठीक है? मतलब we will not waste MUPI का टाइमिंग एंड फालतू का these, and in that we can just keep MUPI और music busy in doing some creative things or some important things, ठीक है? Yeah, so let's see अभी प्रोग्राम कैसे, try to understand, everyone just pay attention properly because this was the first program, ठीक है? अपने को करना क्या है कि write a program to display write a program to display, let's suppose I'm just writing a short, ठीक है? Y, that is the ES का, let's suppose Y on a port 0, ठीक है? And then N on port 1, we are just displaying it on that ports, not on a serial का port, actual 8 bit का जो parallel port है उसके ऊपर display कर रहे हैं, समझो, ठीक है? So write a program to display Y on a port 0, N on a port 1, ठीक है? And we have to generate a square wave, square wave of 10 kilohertz. We have to generate a square of 10 kilohertz by using a timer 0. समझ में आ रहा है? Try to understand the situations first again. ठीक है? So what I will do is here is just like this one. ठीक है? कि मुझे काम क्या करना है, देखो मुझे पोर्ट 1 पे y सेंड करना है, सॉरी पोर्ट 0 पे y सेंड करना है, ठीक है? पोर्ट 1 पे I have to send n, ठीक है? And we have to generate the square wave also. Let's suppose that p something, कुछ तो मैं p assume करूंगा, किधर करूं, let's suppose p 1.2, ठीक है? एंड ऑन p 1.2 वी हैव टू जस्ट कंटिन्यूअसली जनरेट द स्क्वायर वेव, मतलब ये तीन काम करना है मुझे, ठीक है? नाउ लेट्स सपोज इफ यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर 3 टास्क, अगर मुझे ये करना है, सो कैन आई गो विद अ नॉर्मल प्रोग्रामिंग, इज इट पॉसिबल टू राइट दिस वन बाय यूजिंग नॉर्मल प्रोग्रामिंग? कैन वी डू दैट ऑल द 3 टास्क टुगेदर इन बाय यूजिंग नॉर्मल प्रोग्रामिंग? No, sir.
No, why? Because if I just write a program for this, generating this particular square wave, and below that if I write a program to transfer that y and n on this port 0 and port 1, वो कभी execute होगा ही नहीं, because music continuously busy रहेगा इसको generate करने के लिए. समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Try to understand इसका use क्या interrupts का, बहुत सही चीज है. ठीक है? Because if I want to try to do this particular things in one program without using interrupt, तो मैं first I will write a program for, let's suppose वो 10 किलोहर्ट्ज का मैंने वेव बनाने के लिए प्रोग्राम लिखा. ठीक है, उसके बाद आई एम राइटिंग की पोर्ट 0 पे y, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू सेंड इट कंटीन्यूअसली. ठीक है, y सेंड करने के लिए, उसके बाद पोर्ट 1 पे n सेंड करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा. ठीक है, बट आई नो इफ आई वांट टू जनरेट दिस पर्टिकुलर कंटीन्यूअस वे, तो यहाँ पे जब अगेन आएगा वो ये ऊपर ही जाएगा, ये नीचे कभी आएगा नहीं प्रोग्राम. समझ में आ रहा है क्या? तो ये टास्क कभी एग्जीक्यूट होने वाले ही नहीं है. ठीक है, अदरवाइज मैंने बहुत शानेगिरी किया. क्या, ले सपोज मैंने फर्स्ट पोर्ट 0 पे y डिस्प्ले किया, पोर्ट 1 पे n डिस्प्ले किया, एंड उसके बाद इफ आई जनरेट द वेव, तो चलेगा? विल इट डू? अब इसमें चीटिंग क्या होगा? हियर दे हैव सेड कि मतलब यू हैव टू कंटीन्यूअसली सेंड p0 और p1 पे y and n. अब इधर एक ही बार सेंड करेगा और उसके बाद ये इधर बिजी होगा वेव जनरेट करने के लिए. समझ में आ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर. ठीक है, सो अब व्हेनेवर यू वांट टू डू द मल्टीपल टास्क, तब जाके तुझे फिर इंटरप्ट के साथ जाना ही चाहिए. तो फिर मतलब अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू गो विद द इंटरप्ट ओनली. ठीक है, अंडरस्टूड इंटरप्ट का यूज कहां पे होता है? समझो, समझना इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस प्रोग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताना भूल गया, ये टेबल. ठीक है, अभी कैसे ना, व्हेनेवर दैट इंटरप्ट इज अनेबल, ठीक है, मतलब अभी देखो लेट्स सपोज टाइमर 0 का इंटरप्ट इज अनेबल, सो मींस व्हाट, टाइमर 0 वांट सम सर्विस. समझो, अभी टाइमर 0 वांट सम सर्विस. ठीक है, तो अभी मतलब न्यूपी को पता होना चाहिए ना भाई जाना किधर है, मतलब वेयर टू गो एंड सॉल्व दैट प्रोग्राम. समझो. ठीक है, if let's suppose we have written a program like this one. किधर 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 यार, एलसीएम का किधर गया टाइमर का? in a polling mode what was happening is that, so whenever there is what you can say that मतलब whenever the tf flag is 1, so we normally used to clear and उसके बाद फिर से इधर आते थे, मतलब th में लोड करते थे फिर से सेट करके इधर चेक करते रहते थे. ठीक है, so in this case म्यूसी knows, मतलब that microcontroller knows मतलब इंटरप्ट मतलब tf01 होने के बाद करना क्या है. ठीक है, but now in this particular case what we are considering right now, ठीक है, what we are doing right now, मतलब ये तीन काम जो कर रहे हैं बस साथ में. ठीक है, अभी इसमें यूपी विल बी बिजी विद सम अदर थिंग्स, कुछ तो अलग प्रोग्राम रहेगा. ठीक है, और उसके बाद अगर टाइम हो अगर इंटर पे तो फिर जाना किधर है उसको पता होना चाहिए भाई, मतलब एट विच लोकेशन टू गो एंड वी हैव टू सॉल्व दैट आईएसआर और प्रोग्राम. ठीक है, तो उसके लिए कैसे सॉल्यूशन है, लेट्स सी नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट वन. नाउ हर एक इंटरप्ट के लिए ना आईएसआर का लोकेशन फिक्स है. समझो, हर एक इंटरप्ट मतलब व्हेनेवर इंटरप्ट इज ऑकर्ड, ठीक है, सो उसका आईएसआर फिक्स है. आईएसआर मतलब वो पर्टिकुलर उसका रॉम में लोकेशन फिक्स है, मतलब म्यूपी को कहां जाके सॉल्व करना है ये फिक्स है. मतलब म्यूपी को पता है इसने बुलाया तो इधर जाने का, आई यू गेटिंग इट? इसने बुलाया तो इधर जाने का, लाइकवाइज. ठीक है, सो इफ देयर इज इंटरप्ट ऑन इंटरप्ट बिकॉज़ ऑफ INT0, देन म्यूपी विल गो टू द 003 लोकेशन. समझो, सो व्हाट इज द प्रोग्राम वी हैव टू राइट टू सॉल्व दैट INT0 का प्रोग्राम, INT0 का इंटरप्ट वी हैव टू राइट एट 003 लोकेशन ओनली. समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, व्हाई दिस ऑल थिंग्स आर देयर, बिकॉज इंटरप्ट आने के बाद करना, इंटरप्ट आया मतलब क्या, उसके बाद क्या चीज है, मतलब यूपी नीड्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर आईएसआर. ठीक है, एक्चुअली यूपी अभी बिजी था कुछ तो अलग काम करने में. समझो, यूपी बिजी था कुछ अलग काम करने में. ठीक है, तो जब इंटरप्ट आएगा तो यूपी को पता होना चाहिए जाना किधर. लाइक इन दिस केस ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैंने ये एग्जांपल दिया था गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, फाइन. सो यहाँ पे लेट्स सपोज गर्लफ्रेंड कुछ तो अंदर मतलब लेट्स सपोज काम करे घर पे. ठीक है, अब उसको इंटरप्ट करने वाला बहुत सारी चीजें, लेट्स सपोज ये नाउ दिस वन इज आल्सो द इंटरप्ट, मतलब डोर बेल इज इंटरप्ट. लेट्स सपोज उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल भी आल्सो द इंटरप्ट. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज मोबाइल का रिंग बजा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट द सिचुएशन सो दैट द पिक्चर विल बी क्लियर टू यू. ठीक है, लेट्स सपोज मोबाइल का रिंग बजा, तो ये जो मतलब गर्ल है, जो गर्लफ्रेंड है, वो क्या डोर खोलने जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? मोबाइल का रिंग बजा तो दिस वन काइंड ऑफ इंटरप्ट ना, कुछ तो काम करे, मोबाइल का रिंग बजा. अब व्हाट दैट गर्ल विल डू, कम ऑन, व्हाट दैट गर्ल विल डू? Yes, obvious question. What do you think? What this particular girl supposed to do? डोर पे जाएगी कि मोबाइल उठाएगी? हेलो, if there is a interrupt on a mobile, मतलब मोबाइल का अगर रिंग बजा, ठीक है ना, these are the two things which will interrupt this particular girl, that mobile as well as this door bell. ठीक है, अगर मोबाइल पे अगर इंटरप्ट, मोबाइल पे अगर बेल बजा तो फिर क्या करेगी? डोर खोलेगी? मोबाइल.
मोबाइल ऊपर मतलब उसको मोबाइल पता है, हाँ आर यू गेटिंग इट? तो जैसे मतलब वो कौन सा इंटर पे आया तो फिर कहाँ पे जाने का वो पता है, ठीक है। म्यूजिक शुड नो मतलब वेन द इंटर कम तो करना क्या, बिकॉज़ शी इज बिजी विद सम वर्क, मतलब कुछ तो काम कर रही है, कुछ तो पढ़ रही है, अदरवाइज कुछ तो कुकिंग कर रही है, जो करना है जो कर रही है, ठीक है। बट वेन द इंटर पीस है मतलब जैसे मोबाइल पे रिंग है तो फिर मोबाइल पे जाएगी, मोबाइल उठाएगी, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। हाई देयर इज अ इंटर ऑन दिस बेल, अगर बेल का इंटर है तो फिर डोर खोलने जाएगी, मोबाइल नहीं उठाएगी, समझो, ठीक है। लाइकवाइज व्हेनेवर देयर इज एन इंटरप्ट, सो म्यूजिक शुड नो कि कहां पे जाने का है, गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस आर ऑल द लोकेशन व्हिच आर फिक्स, अगर ये इंटर पाया तो उसका सॉल्यूशन इधर है, ये इंटर पाया तो उसका सॉल्यूशन इधर है, ये इंटर पाया तो उसका सॉल्यूशन इधर है, ठीक है। तो अब ये कैसे, नाउ प्रायोरिटी वाइज यू हैव टू राइट int0 t0 int1 t1 एंड सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस टू नंबर, दैट इज अ 3 and b, 3 and b मतलब दिस इज माय वे टू रिमेंबर, अदरवाइज मैं तो बोलता था ये सब नंबर्स, तो पहला 3 याद रखो, उसको 3 को एक जस्ट b बनाओ, ठीक है। उसके बाद 3 में 10 ऐड करो 13, b में 10 ऐड करो 1b, एंड उसके बाद फिर से 13 में 10 ऐड करो 23, ठीक है। सो दिस आर गोइंग टू द बाय डिफॉल्ट एड्रेस, मतलब इस लोकेशन पे जाके सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इफ देयर इज अ इंटरप्ट ऑन int0 then muc will go to the 003 to solve the interrupt, ठीक है। if there is an interrupt because of the timer 0, then mup or muc will go to the 00b to solve the interrupt. If there is an interrupt on a timer excellent interrupt 1, then it will go to the 0013. If there is a interrupt because of the timer 1, it will go to the 001b, and if there is a interrupt because of the serial communication, it will go to the 0023. समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सो दिस आर द लोकेशन वेयर यू विल फाइंड आउट दैट आईएसआर, एक तो पूरा एक तो प्रोग्राम मिलेगा, अदरवाइज प्रोग्राम मतलब कहाँ लिखा है वो मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, मतलब कुछ तो मिलेगा इधर, दैट म्यूजिक विल गो ओवर हियर, तो उसको एक दो चीज मिल सकती है, एक तो प्रोग्राम जिसको मतलब मुझे एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज प्रोग्राम का लोकेशन जहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करना है, दिस टू थिंग्स वी कैन गेट ओवर हियर, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी इंटर इनिशिएट कौन करेगा कि एक्सटर्नल इंटर वाला, मतलब एक्सटर्नल इंटर वाला पिन, मतलब यहाँ पे एक्चुअली वी हैव टू यूज द इंटर ऑन द हार्डवेयर, दैट INT0 पिन, ठीक है। टाइमर 0 का इंटर विल बी इनिशिएटेड बाय द TF0, जैसे TF0 1 होगा, मतलब जैसे टाइमर 0 ओवरफ्लो होगा, इंटरप्ट अपने आप रेस होगा, समझो, ठीक है। तो हु इज कॉजिंग द इंटरप्ट, दैट इज सो इंपॉर्टेंट, तो टाइमर 0 का इंटरप्ट कॉज कौन करने वाला है, द TF0, व्हेन द TF0 इज अ 1, व्हेन द टाइमर इज ओवरफ्लो, यस इट विल क्रिएट अ इंटरप्ट, it will create an interrupt, ठीक है। Likewise for the INT1, that is external hardware interrupt, yes here actually we have to give an interrupt on this particular pin, ये INT1, now ये ब्रैकेट में कौन है, who will cause that interrupt, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए अगर इंटरप्ट चाहिए तो INT0 पे इंटरप्ट देना पड़ेगा एक्चुअल लाइन पे, एक्चुअल पिन पे, ठीक है। टाइमर के लिए अगर चाहिए तो TF0 से होगा, इसके लिए मतलब कुछ पिन पे देने की जरूरत नहीं, दिस विल बी कॉज्ड बिकॉज़ ऑफ दिस TF0, जिससे TF0 1 होगा, यूपी अपने आप इधर जाएगा 000p पे, ठीक है। देन एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1, उसके लिए एक्चुअली वेट की इंटरप्ट ऑन दिस INT1, likewise the timer 1 के लिए वेट की ऑन TF1, and for a serial communication it will be caused because of this RI and TA. Now we have seen that RI and TA का काम क्या है, अगर कौन सा भी बिट कंप्लीटली ट्रांसमिट होता है तो फिर TI1 होता है, अदरवाइज कौन सा भी बिट कंप्लीटली रिसीव हुआ तो फिर RI1 होता है, बट कीप इन माइंड बोथ द इंटरप्ट्स के लिए एक ही लोकेशन है 0023, तो फिर इसमें इधर जाके अपने को एक्चुअली सॉल्व करना पड़ता है कि बाबा इंटरप्ट किसकी वजह से है, RI की वजह से कि TI की वजह से, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। सो कीप इन माइंड whenever interrupt is called or whenever interrupt is occurred, now they are having their own position where we have to write a program उसको solve करने के लिए, fine। so now just come to the task again, देखो कैसे लिखेंगे प्रोग्राम, किधर है मेरा प्रोग्राम, या ठीक है, नहीं ये भी नहीं। So what I want to do now here is that I want to first, मतलब ये तीन टास्क है, पोर्ट 0 पे मुझे y सेंड करना है, पोर्ट 1 पे मुझे n सेंड करना है, और ये टाइमर का मुझे कंटीन्यूअस क्वेरी जनरेट करना है, ठीक है। नाउ वी डू नॉट हैव एनी इंटरप्ट फॉर द पोर्ट 0 एंड पोर्ट 1, तो फिर ये मेन काम में लिखना पड़ेगा, मेन प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो क्वेरी बनाने का उसको मुझे सबरूटीन में लिखना पड़ेगा इंटरप्ट में, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग, देखो इंटरप्ट का कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट 1 hour I will just invest in doing programming of the interrupt, fine। So let's see, so first of all I will write org, I will do it with some other page that you can understand, org 00h, ठीक है। org 00h क्या रहता है, मतलब whenever that, why do we write org 00h, because जब मैं रीसेट मारता हूँ ना, अगर माइक्रो कंट्रोलर को बाय डिफॉल्ट इधर ही जाने वाला है, मैं इधर से प्रोग्राम लिखना चालू करता हूँ, ठीक है। सो आफ्टर दैट इफ यू वांट इमेजेस राइट एल्जेब्रा, समझो अभी कैसे लिख रहे हैं, समझो अभी कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर डू नॉट स्टार्ट राइटिंग अ मेन प्रोग्राम, जो आपको लिखना है ना, टू सेंड द मूव पोर्ट 0, y मूव पोर्ट 0, n वगैरह, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटर का प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Why? Because if I start writing program from here, that 00 location, then what will happen? After some time 000 location, then we'll have 001, then we'll have 002, then we'll have 003, then we'll have 004, likewise, then up to the we will have to the, let's suppose 0023, ये locations है, ठीक है। if I start writing a main program from here 0000,
ठीक है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट बाइट विल गो एट 001, नेक्स्ट बाइट विल गो एट 002, नेक्स्ट बाइट विल गो एट 003. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगा कि नाउ लेट्स सपोज इफ वी हैव इंटरप्ट बिकॉज़ ऑफ दिस INT 0, सो इट विल जस्ट गो टू द 003 लोकेशन, बट उधर कुछ तो मेन प्रोग्राम का ही पार्ट है. समझो क्या हो रहा है. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर डूइंग दैट इंटरप्ट का प्रोग्रामिंग, यू कैन नॉट राइट प्रोग्राम एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. जो तेरा मेन टास्क है ना, ये यहाँ पे नहीं लिखने का है. समझो, अभी यहाँ पे नहीं लिखने का है. समझो काम कैसे करना है इंटरप्ट में. ठीक है, सो वी हैव टू एक्चुअली राइट आफ्टर दैट 23 के बाद में, 23 के बाद में थोड़ा स्पेस छोड़, बिकॉज इसके प्रोग्राम के लिए भी कुछ जगह चाहिए. समझे, यहाँ बीच में स्पेस है. 00 के बाद 003 पे, 3 के बाद बी पे, बी के बाद 13 पे, 13 के बाद 1 बी पे, 1 बी के बाद 2 3, मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है. समझो. ठीक है, एंड यहाँ पे व्हाई देयर इज ओनली स्पेस ऑफ 3 लोकेशंस, हर एक के लिए रीजन है, बट ठीक है इतने डिटेल में फिलहाल तो नहीं जाऊंगा बिकॉज अपने पास टाइम कम है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी देखो प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं. सो व्हाट वी डू इज दैट, जैसे मतलब नॉर्मली व्हेन वी रीसेट द न्यू पे, दैट बाय डिफॉल्ट विल गो टू द 00 लोकेशन एंड वी विल नॉट स्टार्ट राइटिंग मेन प्रोग्राम फ्रॉम हियर. आई विल जस्ट हियर राइट ljump main. समझो, मैं मेन किधर तो दूसरी जगह पे लिखेगा ljump main आई विल राइट. ठीक है, आई विल जस्ट राइट ljump. ठीक है, एंड उसके बाद आई टू राइट अ प्रोग्राम फॉर द टाइमर 0 आल्सो. सो आई विल जस्ट राइट हियर लेट्स सपोज org टाइमर 0 का भी लोकेशन क्या है, मतलब उसके बाद ये 00 इतना लोकेशन में नहीं यूज करेगा. हाँ, टाइमर 0 का लोकेशन 00 p है, तो 00 p में लिख के रखेगा org 00 p. ठीक है, एंड हियर आई विल जस्ट कीप अ स्पेस फॉर व्हाट, टाइमर का प्रोग्राम. टाइमर का एंटर जब आएगा तो क्या काम करना है, दैट प्रोग्राम आई विल राइट ओवर हियर. ठीक है, फिलहाल तो अभी छोड़ देते हैं. ठीक है, उसके बाद अब जैसे सपोज ljump main एंड यहाँ पे समवेयर आई विल जस्ट राइट org, समझो 0030h एंड यहाँ पे आई विल राइट मेन. समझ में आ रहा है. ठीक है, तो अभी क्या होगा, whenever I press a reset, तो reset करेगा तो एक्चुअली 000 पे लोकेशन पे जाएगा. ठीक है, वहां पे 0 लोकेशन पे नहीं, मतलब यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चालू करेगा. यहाँ आई रिटर्न दैट ljump main. ljump main मतलब क्या, वो डायरेक्टली जंप टू द मेन. मतलब मेन कहाँ पे, 0030 लोकेशन पे. मैंने लिखा इधर org 0003 0030. ठीक है, then we just come to the list location. Why I choose this particular 0030 because 0023 तक रिजर्व्ड है. 23 के बाद कुछ लोकेशन छोड़ ले. सपोज आई एम जस्ट कीपिंग द लोकेशन अप द 2f एंड उसके बाद वाला लोकेशन लो दैट इज 0030. समझ में आ रहा है. ठीक है, एक्चुअली यू कैन टेक एनी लोकेशन आफ्टर दिस 2 3, बट नॉर्मली इसके बाद भी थोड़ा सा लोकेशन छोड़ एंड उसके बाद प्रोग्राम. ठीक है, फाइन. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग 0030. समझ में आ रहा है. ठीक है, सो OR मतलब जब मैं रीसेट करेगा बाय डिफॉल्ट इधर जाने वाला है. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ljump main, तो डायरेक्टली मेन पे जंप मारेगा. मेन मतलब जहां पे मेन का लेवल रहेगा. लेट्स सपोज दैट आई एम राइटिंग एट 0030. ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो जो काम है ना, मतलब जो इंटरप्ट से नहीं हो सकता वो काम मैं इधर करेगा. ठीक है, बट बिफोर दैट मुझे ये भी करना है ना, टाइमर 0 से मतलब वो काम करना है ना, टाइमर का मतलब टाइमर को भी सेट करना है. तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट गो टू द मेन. समझो. ठीक है, आई विल से मूव. लेट्स सपोज नाउ दिस इज द वेव 10 किलोहर्ट्ज का वेव मुझे बनाना है बाय टाइमर 0. सो आई विल जस्ट डू इट इन अ मोड 2. I will do it in a mode 2. I will do it in a mode 2. ठीक है, so I will just say move t mode. ठीक है, now I want to use the timer 0 in a mode 2, so I will just move that move t mode comma 0 to h. समझो, try to understand the program and अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क. ठीक है, उसके बाद I will write now let's suppose for this the actual count for the 10 kilohertz, that actual count जो भी आता है actual count is what b6h. ये मैंने कैलकुलेट किया. अभी फिलहाल आप कैलकुलेट मत करो. फॉर द 10 किलोहर्ट्ज लेट्स सपोज जो भी काउंट आता है दैट इज अ b6h. समझो, जस्ट फॉर एग्जांपल. ठीक है, एंड व्हाट वी डू आफ्टर दैट t मोड के बाद वी जस्ट डू दैट मूव th0 बिकॉज़ इधर 0 यूज किया तो th0 #0 b6h. कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क. ठीक है, उसके बाद ये टाइमर का मैंने सेटिंग कर दिया. अब उसके बाद मुझे ये टाइमर का इंटरप्ट इनेबल करना पड़ेगा बिकॉज़ आई वांट टू डू इट बाय इंटरप्ट मोड, नॉट बाय पोली मोड. हियर आई वोंट बी राइटिंग दैट मूव सॉरी jnb tf0. इधर मैं कंटीन्यूअस चेक नहीं करते बैठेगा, मुझे इंटरप्ट का मोड इनेबल करना है. ठीक है, सो हाउ डू वी enable the interrupt by using that IE register. So I will just say that move IE comma. ठीक है, now here I will just say 82h. Why 82? Because if you just remember this particular structure, if I want to use an I, तो फिर ये जो वाला बिट है ये वाला, इसको तो 1 मुझे करना ही करना है. एंड उसके बाद ये टाइमर 0 का बिट इधर है, पहला INT 0 के लिए देन टाइमर 0 के लिए. ठीक है, सो अगर इधर ये 10 को कुछ मीनिंग चाहिए तो फिर इसको 1 करने से दैट्स व्हाई दिस विल बी द 1 एंड t0 को मैंने इधर 1 कर दिया. सो इफ आई जस्ट पुट रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द 0, सो आई विल बी गेटिंग 82. दैट्स व्हाई दिस 82 इज ओवर हियर. अंडरस्टूड व्हाई इट इज 82? यस और नो? Understood why this particular value 82? No. Come on बोलो, ये प्रोग्रामिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, हटके है थोड़ा. Have you all understood why 82 is there? Yes or no? अगर no रहेगा तो बोलो, I will explain it again because I know this one is important one. Again, once again. Sorry? Can you explain Once again. Yeah, let's see.
ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू डू इट बाय इंटरप्ट मोड ना, तो फिर उसमें आई को पर्टिकुलर इंटरप्ट को तुझे अनेबल करना पड़ेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So how I'm doing is this, because just like this one, we have seen that I register. ठीक है, we have seen list of 8 bit 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये 8 bit का register. ठीक है, जहाँ पे ये मेरा EA है, ये reserved है. यहाँ पे this for the INT 0, this for the timer 0, this for the INT 1, this for the timer 1, this for the serial connection, this for the timer 2. ठीक है, दिस वाज द स्ट्रक्चर वी हैव सीन. नाउ व्हेनेवर यू वांट टू डू इट, मतलब इंटरप्ट होना तो फिर करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अनेबल दैट इंटरप्ट. आई में जाके अनेबल करना पड़ेगा. ठीक है, अब मुझे कौन सा चाहिए, टाइमर 0, तो टाइमर 0 इधर है, उसका बिट मैंने उसको 1 किया. फाइन, दिस वाज द ए का स्ट्रक्चर ना, सॉरी आई का स्ट्रक्चर, इंटरप्ट अनेबल का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आई जस्ट रिटन. ठीक है, एंड अगर इफ यू वांट इसको कुछ मीनिंग चाहिए तो फिर ये जो अनेबल ऑल है उसको भी तो 1 रखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये तो इन सब का मेन स्विच है. फाइन, सो आई का वैल्यू क्या है, दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 1 एंड दिस इज द थिंग्स यू कैन जस्ट पुट इट विद द 0. Fine, so this will give me the 8 and this will give me the 2. समझ में आ रहा है क्या? Understood? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, so that's why I have moved this edit. Try to understand. हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का रोल है. ऐसे रैंडम नंबर्स नहीं लिखे. 0 2 because I want to use the timer 0 in a mode 2. Basics because this is the count for that generating that particular frequency. I don't know if this is correct or not. मैंने randomly लिख दिए. ठीक है, उसके बाद आई फॉर वो पर्टिकुलर टाइमर को इंटरप्ट को अनेबल करने के लिए. ठीक है, अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, लेट्स सी. ठीक है, अरे जगह नहीं है. ठीक है, चल मूव आई लिखा, उसके बाद इससे सेट भी टीआर 1. अभी मैंने टाइमर को चालू करके छोड़ देगा, समझो. हियर आई विल जस्ट चालू, मतलब आई जस्ट मेक द टाइमर ऑन एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसको. नाउ हियर आई विल नॉट राइट जेएनबी टीएफ0 वगैरह, वो उधर कुछ नहीं लिखेगा. मतलब आई विल नॉट कीप यूपी बिजी इन जस्ट चेकिंग द टीएफ0 फ्लैग. समझो. ठीक है, इधर मैंने सेट पे टीआर0 कर दिया और उसके बाद आई विल डू जो रेस्ट वाला काम जो मुझे करना था, दैट इज मूव p0 का मुझे y सेंड करना है. ठीक है, मैं पोर्ट 0 पे y सेंड कर रहा हूं कंटीन्यूअसली एंड देन आई एम सेइंग मूव p1 #n. ठीक है, एंड वी वांट टू डू इट कंटीन्यूअसली, दैट्स व्हाई वी जस्ट एस जंप बैक एंड बैक आई विल राइट ओवर हियर. समझो समझो भाई, समझो काम को समझो, बहुत सही चीज है. ठीक है, एंड उसके बाद एंड तो कभी होगा नहीं, बट एंड लिखा मैंने. ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम. ठीक है, नाउ लेट्स सी अभी प्रोग्राम कैसे काम करेगा. समझो अभी, समझो समझो क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये कैसे एक पेज पे दिखेगा यार. Also move. Now try to understand how that program works. This is very important. Then you will just get clear picture क्या काम हो रहा है. ठीक है, समझो अभी क्या हो. म्यूपी एग्जीक्यूट कैसे करेगा, देखो. ठीक है, now here what will happen is that first of all I will just reset the म्यूपी. I will reset the म्यूपी. ठीक है, रीसेट करेगा मतलब नॉर्मली, मतलब whenever you power on, जब भी मतलब सर्किट को चालू कर दो बाय डिफॉल्ट वो रीसेट में ही जाता है. ठीक है, रीसेट मींस व्हाट, इट विल गो टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन 0 0 0. ठीक है, हियर इट विल गेट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एल जंप. इट जस्ट जंप इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली जंप मारना है, बाकी कुछ नहीं करना है. ठीक है, सो इट विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस एल जंप इंस्ट्रक्शन. हां पे यार आ जाना पेन चैनल में आ जाना. फाइन, सो एल जंप मींस व्हाट, इट जस्ट जंप टू द मेन डायरेक्टली, मतलब ये यहां पे आ गया, समझो. ठीक है, देन म्यूपी है, समझो अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे पोर्ट 0, यहाँ पे पोर्ट 1 है, यहाँ पे टी मोड है. अरे सॉरी, मैंने पोर्ट 1 लिखा ना, ये गलत हो गया. ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव टू सेट इन पोर्ट नंबर 2. व्हाई, बिकॉज़ पोर्ट 1.2 पे हम स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते. लेट्स सपोज n मुझे सेट करना पोर्ट नंबर 2 पे, अदरवाइज ये पिन चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी करो. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग. बस पोर्ट नंबर 1.0 पे अगर मैं स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है तो फिर वहां पे n नहीं सेंड कर सकता. ठीक है, सो पोर्ट नंबर 0 पे मुझे y सेंड करना है, पोर्ट नंबर 2 पे n सेंड करना है एंड पोर्ट 1.2 पे मुझे स्क्वायर वेव जनरेट करना है. अभी देखो कैसे हो रहा है. फाइन, सो पहले रिसीव मारा म्यूपी. म्यूपी विल गो ओवर हियर एलजम के पास, मतलब 0 0 के पास, एंड देयर आई हैव रिटन द एलजम मेन, तो ये मेन पे आ गया. ठीक है, देन इट विल सेट दैट टी मॉड. लेट्स सपोज दैट टी मॉड इज 805 है. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. ठीक है, ये टी मॉड है, इधर मैंने 0 2 डाल दिया. जैसे 0 डाल दिया, इसको समझो कि टाइमर 0 यूज कर रहा है, वो 8 बिट ऑटो रीलोड में यूज कर रहा है, मोड 2 में 8 बिट ऑटो रीलोड में. ठीक है, तो इट विल जस्ट ओपन दैट th1 फॉर इट. th1 में इसने काउंट रख दिया b6. फाइन, उसके बाद आई एम सेइंग आई में, नाउ समझो आई में, इसमें राइटिंग इन 82. जैसे मैं आई में 82 लिखा था, उसको समझा कि टाइमर 0 का इंटरप्ट अनेबल करना है. टाइमर 0 का इंटरप्ट अनेबल करना मतलब क्या, जैसे ही TF0 आएगा यूपीओ 00 कौन सा लोकेशन, या 00 बी लोकेशन को भागेगा. ठीक है, दैट इज मतलब TF मतलब अनेबलिंग टाइमर का इंटरप्ट मींस. ठीक है, तो व्हेन आई सेड द I82 मतलब टाइमर 0 का इंटरप्ट अनेबल हुआ. टाइमर 0 का इंटरप्ट अनेबल मींस व्हाट, व्हेन द इंटरप्ट ऑकर्स बिकॉज़ ऑफ टाइमर 0, मतलब टाइम TF0 मेरा अगर 1 होगा देन यूपी विल गो टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन OR000 पे. दैट इज व्हाट दिस I इज इक्वल टू 82 मींस. ठीक है, जब मैं 82 लिखूंगा तो टाइमर 0 का इंटरप्ट अनेबल है. इंटरप्ट अनेबल मतलब इंटरप्ट जब आएगा तो वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा.
फाइन, उसके लिए जो भी डेडिकेटेड है फाइन। क्या तो मैंने आई एच करके छोड़ दिया, उसके बाद सेट बी टी आर जीरो। अभी सेट बी टी आर से क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होने वाला है, ठीक है। ये टी एच का वैल्यू भी टी एल में जाएगा, पता है ना, ऑटो रिलोड मोड में, बी सिक्स इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने वैसे सेट बी टी आर जीरो, अब ये बी सिक्स इंक्रीमेंट होना चलो, मतलब ये इधर इसका काम करना चलो, बी सिक्स का बी सेवन बी एट बी नाइन, ये टाइमर कर रहे हैं ना, दिस इज द टाइमर का लुकआउट, ये टाइमर उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तब तक न्यूपी क्या कर रहा है समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये टाइमर ने इंक्रीमेंट करना चालू किया, इंक्रीमेंट करने का काम टाइमर करता है, अपन नहीं करते, म्यूपी नहीं करता, ठीक है। उसके बाद म्यूपी विल गो ओवर हियर, मूव p0, y, मतलब पोर्ट 0 पे y सेंड किया, पोर्ट पे n सेंड किया, एंड वी हैव टू सेंड इट कंटीन्यूअसली। सो एचएम पैक को कंटीन्यूअसली सेंड कर रहा है, yn कंटीन्यूअसली डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स सपोज पोर्ट 0 पोर्ट पे वी आर हैविंग सम डिस्प्ले डिवाइस, वहां पे yn कंटीन्यूअसली डिस्प्ले हो रहा है, फाइन। उसके बाद अभी आफ्टर सम टाइम, मतलब ये टाइमर तो चालू करके छोड़ दिया ना मैंने, b7 हो गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दिस विल रीच टू द ff, इंक्रीमेंट होते होते, एंड ff का 0 0 हो जाएगा, एंड जब ff का 0 0 होगा देन व्हाट विल हैपन, ff का 0 0 होगा देन व्हाट विल हैपन, ये जो मतलब काउंट जो इंक्रीमेंट, मतलब टाइमर चालू करके छोड़ा वो तो इंक्रीमेंट होगा ना, इंक्रीमेंट मींस इट विल सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट विल रीच टू द ff, एंड ff के बाद इट विल रीच टू द 0 0, एंड जैसे ही 0 0 व्हाट विल हैपन, tf0 का क्या होगा, tf0 विल बी व्हाट, Zero. tf0 विल बी वन। Zero. अभी tf0 वन हुआ, एंड tf0 इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअली कॉज फॉर द टाइमर जीरो का इंटरप्ट। tf0 अगर वन होता टाइमर जीरो का इंटरप्ट, अब देखिएगा जैसे tf0 वन हुआ ना, हियर भी चेक, अरे पहले से इंटरप्ट अनेबल है, मतलब व्हाट, अब जैसे tf0 वन हुआ ये इस लोकेशन पे भागा, अभी इधर जाएगा वो, समझो, ठीक है, 0 0 बी लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मुझे प्रोग्राम क्या लिखना है, वो स्क्वायर वेव वन है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज दैट, नाउ पोर्ट 1 पॉइंट लेट्स सपोज 2 पे इनिशियली कुछ तो वैल्यू आई डोंट नो, लेट्स सपोज 0 है तो 0 कंटिन्यू किया फॉर सम टाइम, ठीक है। नाउ व्हेन दैट इंटरप्ट इज जनरेटेड, समझो इंटरप्ट जनरेट हुआ, अब ये इधर जो भी काम कर रहा है, मतलब म्यूपी एक्चुअली ये काम कर रहा है, ये सेंडिंग वाई एंड कंटीन्यूअसली यहाँ पे भी सी, पर जैसे इंटरप्ट इसको छोड़ेगा अभी वो जाएगा इधर 0 0 बी पे, समझो अभी ये 0 0 बी लोकेशन पे जाएगा। हाँ बट बिफोर गोइंग दैट विल सेव दैट, मतलब जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा उसका एड्रेस सेव करके रखता है, ठीक है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस सेव करके रखता है, ठीक है। सो नाउ इट विल जस्ट गो टू द, जैसे इंटरप्ट इट विल गो टू 0 0 बी लोकेशन, एंड हियर व्हाट आई विल राइट इज दैट, नाउ हियर वी वांट टू जनरेट a square wave, so I will just simply write one or two instruction like cpl p1.2 and reta, ठीक है, because this one is just a subroutine. Now if you just remember at the end of the subroutine we just used to write the ret, ठीक है, but if it is an interrupt का subroutine we have to just write reti, समझो, we have to write reti, ठीक है। there is a difference in ret and reta, ठीक है। what is the function of return is that just simple return is what, मतलब जब भी सबरूटीन का काम खत्म हो जाए तो जहां पे भी मेन प्रोग्राम छोड़ा था उधर जा, ठीक है। बट आरईटीआई का काम क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां भी तेरा सबरूटीन खत्म हो रहा है, ये सॉरी या जैसे तेरा सबरूटीन खत्म हुआ उसको जो मेन प्रोग्राम पे जाने का, ठीक है, बट जिसने तेरे को बुलाया, जिसने इंटरप्ट कॉज किया उसको भी जीरो कर, समझो। नाउ हियर वी आर नॉट मेकिंग द टीएफ0 क्लियर, इधर करने नहीं किधर भी, अब ये दिस इज द काम ऑफ आरईटीआई कि जिसने भी इंटरप्ट कॉज किया उसको जीरो कर, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाट द आरईटीआई एंड आरईटी में डिफरेंस, ठीक है। सो व्हेनेवर आरईटीआई विल इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इट विल जस्ट क्लियर जिसने उसको बुलाया है, आई गेट इट, इट विल जस्ट मेक दिस tf0 क्लियर एंड उसके बाद जाएगा मेन प्रोग्राम को काम करने के लिए। व्हाई, अगर मैंने इसको क्लियर नहीं किया तो फिर से इधर ही आते रहेगा 00 पे, समझ में आ रहा है क्या। नाउ दैट इज द डिफरेंस इन आरईटी एंड आरईटी। आरईटी से क्या करेगा, जो जिधर मेन प्रोग्राम चल रहा है उधर जाएगा, बट आरईटी क्या करता है, दिस इज रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सबरूटीन, इट इज नॉट अ नॉर्मल, इट इज इंटरप्ट सबरूटीन। इंटरप्ट सबरूटीन मतलब किसी ने तो बुलाया मेरे को, ठीक है, एंड इफ इट इज किसी ने बुलाया तो जिसने बोला उसको जीरो कर, fine, and उसके बाद go to the main program, that is the difference in RET and RET. So that's why जब भी मैंने writing the ISR or the inter service routine or a program for the interrupt, then at the last we write RETI not RET, समझो फंडा बहुत है इसमें, understood, ठीक है। so here I will write RET, अब क्या होगा, जैसे ही मतलब let's suppose interrupt over here it will complement P1.2, P1.2 जो 0 था उसको 1 करेगा, ठीक है। बाद में आरईटी है मतलब व्हाट, इट इज मेक दिस टीएफ0 इक्वल टू 0 एंड वंस अगेन कम टू द मेन प्रोग्राम, तब तक मतलब सेट बीटीएस तुमने करके रखा है वो चालू रहेगा, फिर आर यू गेटिंग इट, फिर से मतलब वो सेट बीटीएस से क्या होगा वंस अगेन, या मतलब ये दिस इज टाइमर 2 ना, टाइमर इन मोड 2, तो फिर ये 0 0 पहुंचा, फिर से इसको लोड करेगा टीएल को, दैट इज अ P6 से जो भी अकाउंट है फिर से लोड करेगा बिकॉज़ 8 बिट ऑटो रीलोड, ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट होना चालू करेगा, तब तक यूपी इधर फिर से सेंड करते रहेगा yn आफ्टर सम टाइम दिस विल आल्सो गेट मतलब इंटरप्टेड, ठीक है। टीएफ1 होगा, जैसे इंटर होगा यूपी ए काम इधर छोड़ेगा फिर से भागेगा इधर 00 बी पे, ठीक है। हियर वी रिटर्न कॉम्प्लीमेंट 1.2, मतलब वो कुछ टाइम के लिए मतलब वो 1 रह गया, ठीक है, उसके बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट किया उसको 0 किया, ठीक है। ऐसे हो गया, इधर वी रिटर्न आरईटी है, आरईटी मतलब वो जो टीएफ0 1 हुआ तो उसको फिर से 0 कर, एंड वंस अगेन कम टू द मेन प्रोग्राम, फिर से yn कंटीन्यूअस सेंड करे, वैसे इंटर पाएगा जाएगा इधर, आर यू गेटिंग इट, काम क्या हो रहा है, understood how the MIPI is executing the program,
Yes. Everyone, because interrupt का program is very important one. You must understand flow कैसे हो रहा है. Is that clear to each and everyone who are present in the lecture? Yes or no? पक्का? संकेत शेट्टी, रोहन जैन, आप लोग हो गए नहीं? ये जैसे अटेंडेंस लगाने के लिए आ गए. वैसे लेक्चर लास्ट लेक्चर था, मुझे एक्चुअली आज मैं बिजी भी था, बट देन आल्सो आई हैव टेकन आउट टाइम सम एंड आई एम जस्ट टेकिंग दिस लेक्चर. सो जस्ट प्लीज केयरफुल अटेंड इट. अदरवाइज आई वुड हैव सेड कि इंटरम का पार्ट तुम खुद से कर लो, पर मुझे पता है नहीं समझेगा, इसके लिए आई एम टेकिंग द लेक्चर. ठीक है, सो दिस इज वन प्रोग्राम वी हैव सीन. नाउ वी विल सी द लास्ट प्रोग्राम. एक्चुअली आई कैन सी, मतलब आई कैन शो यू टू मोर प्रोग्राम, बट ठीक है, अपन एक दो प्रोग्राम देखते हैं. नाउ लेट मी जस्ट शो इट ऑन स्लाइड ओनली. दे आर देयर. ठीक है, आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स टू यू, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वन. यहाँ पे प्रोग्राम्स है. And this was a program. This was for what? Write a program to continuously get 8-bit data from the port 0 and send it to the port 1 while simultaneously creating a square of 20 microsecond period on P 2.0 and use timer 0 to create. तो वैसे वाला प्रोग्राम है. तो देखो कैसे किया. ORG 00 jump main. ठीक है, एंड उसके बाद 00 बी लोकेशन पे उसका वो प्रोग्राम था, जैसे CPL लिखा, जैसे मुझे स्क्वायर करना है तो फिर कॉम्प्लीमेंट लिखा, खत्म. एंड देन RET है. ठीक है, और उसके बाद मेन प्रोग्राम इधर 0030 से आ गए. सो मूव टी मोड को 0 टू पोर्ट 0 को मैंने इनपुट किया, बिकॉज पोर्ट 0 से इनपुट लेके पोर्ट 1 पे भेजना है. दिस इज ऑल द टास्क. यहाँ पे टास्क है प्रोग्राम टू कंटिन्यूअसली गेट 8-bit डेटा फ्रॉम द पोर्ट 0 and send it to port 1. तो पोर्ट 0 से लेना है, पोर्ट 1 पे सेंड करना है. एंड वी नो whenever we want to make something as input, तो उसको FF करना, मतलब इनपुट करना पड़ता है. आउटपुट रहेगा तो कुछ टेंशन नहीं, डायरेक्टली डेटा सेंड करो, बट इनपुट रहेगा तो फिर उसको इनपुट करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज डन ओवर हियर. सो आई एम जस्ट मेकिंग पोर्ट 0 से इनपुट, ये TH0 में जो भी वैल्यू है वो डाल दिया, आई में उसको अनेबल कर दिया, उसके बाद आई एम सेइंग सेट बिट TR0 वो चालू कर दिया. देन आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द पोर्ट 0 एंड पोर्ट 1 पे मैं कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हूँ. एंड जैसे इंटर पाएगा फिर से वो ये पर्टिकुलर सबरूटीन पे जाएगा, इसको क्लियर करेगा एंड वेव भी क्रिएट होगा. सो दैट वाज अ प्रोग्राम. ठीक है, 11.2. उसके बाद 11.3 जाने दो, ये आप बाद में देख लो. कौन सा तो इजी वाला थोड़ा सा है क्या, सीरियल कम्युनिकेशन वाला. या नाउ लेट्स सी. क्या करो यहाँ पे, ये बताओगे नहीं. हाँ, now in our first case we have used the timer in a mode 2, so that's why there we need not to load that count again. मतलब TH में फिर से वैल्यू लोड करने की जरूरत नहीं, because वो ऑटो रिलोड है. ठीक है, but let's suppose if I change की, you have to use timer in another mode. ठीक है, you have to use in another mode, then वो केस में थोड़ा सा इशू हो जाएगा. मतलब let's suppose मोड 1 में यूज करना है, यहाँ पे you can see मोड 1 में. ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्राम वैसे लिखेंगे. तो देखो यहाँ पे टास्क है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट स्क्वायर वेव ऑफ 50 हर्ट्ज एट P 1.2. ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट यूजेस एन इंट्रो फॉर टाइमर 0 या फाइन एंड क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी सो एंड सो. तो 9.12 का जो भी काम है वो भी करना है, एंड स्क्वायर वेव जनरेट करना 50 हर्ट्ज का P 1.2 पे. ठीक है, तो देखो प्रोग्राम कैसे. ORG 00 एलजंप मेन, जैसे मेन पे आया. ठीक है, यहाँ पे मैंने टी मोड का सेटिंग किया. ठीक है, TL0 में मैंने 00 लोड किया, TH0 में DC लोड किया, समझो. एंड आई में मैंने 82 लोड किया, क्योंकि मैं टी मोड में ये सेटिंग है, मतलब टाइमर 0 मोड 1 है, समझो. अभी क्या करना पड़ता है इसमें, थोड़ा चेंजेस कैसे. ठीक है, देन आई एम सेइंग सेट बिट TR0, मतलब टाइमर को चालू किया, एंड इधर ही टाइम पास कर रहा है. तो मुझे एक्चुअली जनरेट करना स्क्वायर वेव है, बट आई वांट टू डू इट बाय यूजिंग इंटरप्ट मोड. ठीक है, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं है. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मतलब ये मैंने टाइमर चालू करके छोड़ दिया, म्यूपी इधर आराम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे. ठीक है, एंड जैसे भी इंटरप्ट आएगा ना, म्यूपी विल गो टू द 00 बी लोकेशन, बिकॉज टाइमर 0 है, 000 बी. ठीक है, आई थिंक टाइमर 0 का 00 बी है, तो यहाँ पे आएगा 000 बी लोकेशन पे. ठीक है, बट नाउ हियर व्हाट आई एम डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज अ टाइमर इन मोड 1, तो मतलब क्या, अभी जब टाइमर ओवरफ्लो हो जाएगा 1, नाउ देयर इज नथिंग लाइक, मतलब वी आर गोइंग टू पुट दैट काउंट अगेन इन अ TH एंड TL. ठीक है, सो दैट पार्ट वी राइट ओवर हियर, समझो. तो यहाँ पे व्हाट आई हैव डन, दैट कॉम्प्लीमेंट P 1.2 उसको कॉम्प्लीमेंट किया स्क्वायर वेव के लिए, पर उसके बाद आई हैव रिटन दैट काउंट अगेन, दैट TL0 में 00, TH0 में 00, सॉरी DC जो भी काउंट मैंने निकाला रहेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू पुट इन दिस पर्टिकुलर इंटरप्ट सर्विस. व्हाई, बिकॉज इन मोड 2 इट इज पॉसिबल दैट इट इज ऑटो रीलोड, मतलब वो अपने आप काउंट लेता है. बट इफ इट इज अदर देन इन मोड 2, देन यस, इन दैट केस यू हैव टू प्लेस दैट काउंट अगेन बाय योरसेल्फ, अदरवाइज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 00.
So to avoid that, here I'm saying complement as well as I'm putting that count again, and then I'm saying RET. समझ में आ रहा है क्या? Understood? Yes. ठीक है, नहीं समझेगा तो प्लीज आस्क, आई विल एक्सप्लेन इन मोर बेटर वे. ठीक है, या सो दिस वाज द टास्क एंड नाउ आई हैव टू शो फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, सो यू विल अंडरस्टैंड. ये सब फिलहाल डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है. just want to take one example for the serial communication if it is there. ये टिकॉन इधर था, ये टिकॉन है, ये भी चाहिए, ठीक है. कम्युनिकेशन का प्रोग्राम, हाँ दिस इज, या लेट्स सी. ठीक है, अभी काम क्या करना है समझो, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता इंटरप्ट में. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. अगर नहीं समझेगा तो बोलो, मैं बोर्ड पे करता हूँ फिर. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स सी. सो राइट अ प्रोग्राम इन व्हिच 8051 रीड्स डेटा फ्रॉम अ पोर्ट 1, पोर्ट 1 से रीड करना है, writes it into the port 2 continuously, the port 1 से लेना port 2 पे सेंड करना है. दैट इज ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इट इन अ मेन प्रोग्राम. व्हाई? बिकॉज़ वी डू नॉट हैव एनी इंटरप्ट फॉर द पोर्ट्स. फाइन. व्हाइल गिविंग अ कॉपी ऑफ इट, मतलब पोर्ट 1 से रिसीव कर, समझो पोर्ट 1 से रिसीव कर, पोर्ट 2 को तो देना ही देना है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू गिव द कॉपी ऑन अ सीरियल पोर्ट आल्सो. सो वी हैव टू सेंड इट ट्वाइस, मतलब एट टू लोकेशंस, पोर्ट 2 पे भी सेंड करना है और सीरियली भी बाहर भेजना है. तो पोर्ट 1 से रिसीव करना डेटा 8 बिट का, पोर्ट 2 पे कंटिन्यूअस सेंड कर, एट द सेम टाइम यू हैव टू सेंड ऑन द सीरियल कम्युनिकेशन का पोर्ट आल्सो, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन जो ट्रांसमिट पे है उधर भी मुझे सेंड करना है. ठीक है, सीरियली. ठीक है, एंड अज्यूम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी सो एंड सो. तो देखो अभी कैसे करेंगे. नाउ वंस अगेन ऑब्वियसली वी हैव टू गो विद द इंटरप्ट, बिकॉज़ अगर इफ आई एम कंटिन्यूअसली रीडिंग एंड ट्रांसमिटिंग तो पोर्ट 2 वो तो काम हो जाएगा, बट ये काम नहीं होगा सीरियल कम्युनिकेशन का. एंड इफ यू हैव टू डू द ऑल द टास्क टुगेदर तो फिर इंटरप्ट के लिए जाना पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे प्रोग्राम है, लेट्स सी. ORG 00 jump main. Now we want to write a program for that serial communication. ठीक है, तो उसका लोकेशन है 0023, दैट इज व्हाट वी हैव सीन 0023. ठीक है, सो आई एम राइटिंग ORG 0023 एंड यहाँ पे आई एम सेटिंग LJump serial. ट्राई टू अंडरस्टैंड एज आई टोल्ड. So on that location what you will get, either program to solve, मतलब ISR मिलेगा, otherwise program का लोकेशन मिलेगा. When you go to, जब इंटर पाएगा, जब ये इस लोकेशन पे म्यूपी और म्यूसी आएगा, so what that म्यूपी और म्यूसी will get कि either that program to solve, जो प्रोग्राम एक्चुअली मुझे सॉल्व करना, that म्यूपी will get, otherwise it will get location where we have to, where that म्यूपी have to jump and you have to solve that ISR. ठीक है, now why do we do like this one? because as we have seen over here, मतलब जो लोकेशन था, अब इसको एडिट करने में या है. ठीक है, मतलब फर्स्ट वी हैव सीन फर्स्ट इज 00 जो ORG, उसके बाद for INT 0 it is at 003, then we are having 0013 something, no sorry 00B. ठीक है, now let's suppose if you are having some program for INT 0 which is actually the bigger one, which is actually bigger, मतलब वो 2-3 बाइट का नहीं है, जैसे वो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है. so we know कि मतलब 3 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो B के आगे तो जाने ही वाला है. समझो what I'm saying, समझो what I'm saying. ठीक है, सो INT 0 का जो भी टास्क करना है, जैसे INT 0 का इंटर पाएगा वो 003 लोकेशन पे आएगा, दैट इज फाइन. बट इफ आई नो क्या, मतलब INT 0 का जो भी प्रोग्राम अगर वो बड़ा है, नाउ इन दिस केस व्हाट मतलब ये जो प्रोग्राम था जस्ट 2 लाइन का था, तो अगर मैंने इधर लिखा तो भी कुछ इशू नहीं है. व्हाई? बिकॉज़ 00B के बाद जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है 13 है, मतलब इसमें थोड़ा गैप है. B के बाद C D E F देन 10 11 एंड 12 वी आर हैविंग दिस मेनी बाइट्स, और इसमें ये प्रोग्राम फिट हो जाएगा बिकॉज़ दिस ऑन 2 बाइट ओनली. ठीक है, बट इफ आई नो कि ये जो प्रोग्राम जो भी मतलब इंटर का प्रोग्राम इतना अगर वो बड़ा है, then at that time what do? We do not write at this location, because यहाँ से मैंने अगर चालू किया प्रोग्राम, so it may consume the locations of that timer 0 timer 1, जो बाकी वाले इंटर पे उनका भी लोकेशन खा जाएगा. ठीक है, so what do we do in that case is that if the program is somewhat बड़ा, then in that case we just मतलब ये इधर इंटर पाएगा, यहाँ पे हमें से LJump some other location, मतलब where we can store that कितना भी बड़ा प्रोग्राम. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting what I'm saying कि बाउंसर मार रहा है? Is that clear? So that depends on a inter service routing का size. अगर मेरा inter service routing का size अगर 4 byte 8 byte के बीच में, so in that at that time we can just write the program at this location only. But if it is exceed that one, अगर मेरा program थोड़ा बड़ा है, then in that case here I will go and here I will say LJump जो भी serial का जो भी subrouting का name जो रहेगा उधर मैं LJump बोलूंगा and then I will write somewhere else. समझ में आ रहा है कि I will not write at that location. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर चालू किया तो फिर वो बाकी वाले इंटर का लोकेशन खाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे. ठीक है, तो दैट्स व्हाई हियर वी कैन से दैट LJump दैट पर्टिकुलर जो प्रोग्राम जिधर भी लिखा है उसका लोकेशन.
ठीक है, so that's why I said कि whenever it is interrupted, MUP will go to that location that is for 100%, it will go over here. But यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, अगर प्रोग्राम छोटा है तो प्रोग्राम इधर मिलेगा, और अगर प्रोग्राम बड़ा है तो फिर प्रोग्राम का लोकेशन मिलेगा, कहाँ पे जाके सॉल्व करना है फिर से. आई होप यू आर गेटिंग इट. इंटरप्ट बहुत सही चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बट मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू जस्ट रैप अप एवरीथिंग इन 2 hours. अदरवाइज मैं इसको बहुत मस्त आराम से खींचता फुल एग्जांपल्स के साथ. ठीक है, बट लेट इट बी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड आई एम जस्ट कीपिंग ऑन रिकॉर्ड, तो फिर आप यू कैन जस्ट चेक इट लेटर ऑन आल्सो. ठीक है, तो अभी देखो व्हाट वी विल डू इन दिस केस व्हेन योर प्रोग्राम इज थोड़ा सा बड़ा एंड दिस इज सीरियल कम्युनिकेशन, बिकॉज़ वी हैव टू चेक फॉर इंटरप्ट आया किसकी वजह से, बिकॉज़ सीरियल कम्युनिकेशन का इंटरप्ट इट में बी इधर बिकॉज़ ऑफ आरआई एंड टी है, तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा किसने दिया है. ठीक है, तो देखो वो कैसे करते हैं. लेट्स सी. सो हाउ आई एम डूइंग. सो org 00 ljump main org 33 एंड यहां पे राइटिंग ljump सीरियल कौन है, जस्ट मिनट गाइस. या सो आई विल जस्ट राइट ljump, एक मिनट. Fine, yeah. ljump serial. So I will just write that program for a serial at some other location because we know कि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो फिर दूसरी जगह पे लिखते हैं. ठीक है, then I'm saying org 00 and main. Fine. So what is happening is that जैसे मतलब यूपी रिसेट बनेगा इधर आएगा, यहाँ देखिए ljump main, तो यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, पहला इंस्ट्रक्शन इधर से एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, so I'm saying move p1 #0ff. Now this is for what, to make that port 1 as an input because यहाँ से port 1 से मुझे डेटा रीड करना है, तो मुझे इनपुट करना पड़ता है. ठीक है, मैंने 0ff सेंड किया तो वो port 1 इनपुट हो जाएगा. भाई उसके बाद या नाउ वी वांट टू लेट्स सपोज सीरियली ट्रांसमिट भी करना है, तो सीरियली ट्रांसमिट मतलब क्या, टाइमर वगैरह सब देखना पड़ेगा मुझे. समझो अभी क्या क्या करना है, बहुत कुछ करना है. ठीक है, सो लेट्स सपोज नाउ हियर नथिंग इज गिवन, तो आई विल जस्ट अज्यूम कि बॉर्डर 9600 है और वी हैव टू सेंड 8 बिट का डेटा वगैरह. ठीक है, सो आई एम सेइंग मूव t1, 20 मूव th1, fd. आई होप दैट एवरीवन नोस दिस वन. देन मूव s1, 50. ठीक है, देन आई विल अनेबल द इंटरप्ट फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन. I will enable interrupt for serial communication. समझो. ठीक है, so that is done over here. The I में ये वाला चीज 1 रखा और इसको भी 1 रखा. ठीक है, then I'm saying set btr1. set btr टाइमर को चालू किया एंड सीरियल कम्युनिकेशन में वो tf को क्लियर करने की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती, वो क्यों थोड़ा देखना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं पड़ती tf को क्लियर करने की. ठीक है, तो मतलब दैट्स व्हाई वी यूज दैट मोड 2 बिकॉज़ वो ऑटो रीलोड है, अपने आप फिर से काम करते जाएगा. ठीक है, तो set btr1 टाइमर को मैंने चालू करके छोड़ दिया. फाइन. ठीक है, उसके बाद नाउ आई एम डूइंग दैट, जो काम करना था मतलब मुझे पोर्ट 1 से लेके सब जगह सेंड करना है. ठीक है, सो आई जस्ट से के मूव a, पोर्ट 1. ठीक है, मतलब इधर देव सेट की रीड डेटा फ्रॉम पोर्ट 1, तो डेटा रीड करेगा. उसके बाद मूव sbuf कॉमा है बिकॉज़ वी हैव टू गिव द कॉपी एट टू लोकेशन. एक तो सीरियल में मुझे बाहर भी भेजना है एंड पोर्ट 2 पे भी भेजना है. सो हाउ डू वी से दैट सीरियली, तो यू जस्ट से दैट मूव sbuf कॉमा है बिकॉज़ अभी डेटा a में मैंने पोर्ट 1 से a में लिया. आई एम सेइंग मूव sbuf कॉमा है. नाउ व्हेनेवर आई से मूव sbuf कॉमा है, व्हाट विल हैपन, now it will start sending the output serially out. ठीक है, मैंने इसका मूव sbuf कॉमा है बिकॉज़ ये इधर मैंने सब सेटिंग करके रखा है सीरियल कम्युनिकेशन का. एसकॉन में 50 है, बॉर्डेड वगैरह सब सेट है एंड इफ आई से मूव sbuf कॉमा है, अभी डेटा सीरियली बाहर जा रहा है. ठीक है, देन वी जस्ट कम ओवर हियर, ए का डेटा पोर्ट 2 में सेंड करेगा. अभी लेट्स सपोज सीरियली बाहर जा रहा है डेटा एंड आई एम सेइंग jump back. ठीक है, टाइम अभी क्या होगा, सीरियल डेटा बाहर जा रहा है और यहाँ पे पोर्ट 2 में मैंने सेंड किया. अभी बाहर 8 बिट जाने के बाद नाउ दैट इंटरप्ट विल बी क्रिएटेड. आर यू गेटिंग इट? अरे यार जाना. ठीक है, सो whenever we are sending that data outside. ठीक है, सो whenever all the 8 bits are transmitted then ti will create an interrupt. ठीक है, and जैसे ti interrupt करेगा तो म्यूपी किधर जाएगा, अभी म्यूपी will go over here 0023 लोकेशन पे. ठीक है, यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे लिखा है कि ljump सीरियल. समझो अभी क्या हो रहा है, पोर्ट 1 से डेटा लिया मैंने, सीरियली सेंड करना चालू किया, मैंने आगे गया, मैं इधर वेट करते नहीं हुआ टू चेक द ti bit and all because now that will everything will take care by using that interrupt service route. ठीक है, आई एम नॉट हियर चेकिंग दैट टी आई का बिट. ठीक है, नॉर्मली व्हाट वी यूज्ड टू डू इज दैट जेएनबी टी आई, उसके बाद टी आई को क्लियर वगैरह करना, वो सब नाटक रहता था, बट इधर अभी नहीं करूंगा मैं बिकॉज़ दैट आई विल डू इन अ इंटरप्ट रूटीन. ठीक है, तो मैंने सीरियली सेंड करना चालू किया और पोर्ट 2 पे भेज दिया मेरा डेटा. फाइन, एज सेंडिंग अ बैक, ये कंटिन्यूअसली चालू है. लेट्स सपोज फाइन, अभी क्या होगा ना, लेट्स सपोज व्हाइल सेंडिंग, बिकॉज़ अभी होता कैसे, मुझे कंटिन्यूअसली सेंड करना है ना. ठीक है, सो डेटा सेंड करने के बाद वो इंटरप्ट देगा कि अभी नेक्स्ट डेटा भेजा करके. फाइन, सो लेट्स सपोज मतलब ये अभी चालू है प्रोग्राम, मतलब इधर मतलब यूपी अभी इधर ही रहेगा, जंप बैक इधर रहेगा एंड लेट्स सपोज अभी इंटरप्ट आया. ठीक है, इंटरप्ट आया मींस व्हाट, इट जस्ट लाइक कि इंटरप्ट आया मींस व्हाट, डेटा ट्रांसमिट हुआ है, अभी इज आस्किंग फॉर द नेक्स्ट डेटा, मतलब टीआई का इंटरप्ट जनरेट हुआ. ठीक है, सो इट विल गो ओवर हियर. सो हियर आई नो कि मतलब सीरियल का प्रोग्राम इसमें छोटे से जगह में नहीं रहेगा, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ljump सीरियल. अब इधर से फिर सीरियल पे जंप मारेगा, समझो यहाँ पे. ठीक है, अब मुझे एक्चुअली इधर कंफर्म करना है whether this particular interrupt is because of TI or RI, because now this is what the serial communication का interrupt and we do not know which actually that's caused it, whether it's a TI or RI who has actually called this one. TI ने कॉल किया कि RI ने कॉल किया, बिकॉज दोनों के लिए एक ही इंटरप्ट. समझो
ठीक है, तो मुझे फर्स्ट चेक करने का बाबा टीआई ने किया कि आरआई ने किया, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जेबीटीआई, अगर टीआई ने अगर मतलब जेबीटीआई मतलब अगर टीआई 1 है तो ट्रांसमिट की वजह से आया, सो आई विल जस्ट गो टू द टीआई, ठीक है, और अगर टीआई अगर 0 रहेगा देन दैट इज फॉर बाय यूजिंग रिसीव, बिकॉज़ व्हाई आई एम सेइंग रिसीव, बिकॉज़ व्हेनेवर आई से द s1 इज इक्वल टू 50 मतलब मैंने रिसीव भी अनेबल करके रखा है, ठीक है, तो डेटा सीरियली रिसीव भी हो सकता है। Are you getting it? So that's why you try to program for TI as well as RI, because serial communication का interface only just for a common, that is common for the TI as well as RI. So I will just set LGM serial and then I will check कि interrupt किसकी वजह से आए, TI की वजह से कि RI की वजह से. So first I am checking see JBT है, JB means jumpy bit TI, ठीक है, मतलब अगर TI bit अगर 1 है, JB means what, अगर वो बिट 1 है तो जंपी बिट TI means what, अगर TI बिट 1 है मतलब वो ट्रांसमिट की वजह से आए, फिर RI की वजह से नहीं आए, सो इट मींस इसको ट्रांसमिट यहाँ पे आएगा, क्लियर टीआई करेगा मतलब टीआई को 0 कर देगा, फिर से रिटर्न इंटरप्ट, रिटर्न फ्रॉम द इंटरप्ट मतलब यहाँ पे किधर भी था उधर आ जाएगा, एंड फिर से वो मतलब पोर्ट 1 से डेटा लेगा एंड सेट करना चालू करेगा, ठीक है, बट इफ इट इज अ इंटरप्ट बिकॉज ऑफ सीरियल सॉरी रिसीव बिट, if it is a interrupt because of serial, because we have enabled receiving also, try to understand, and it can receive also, that serial communication का interrupt can be caused because of TI as well as RI, मतलब दोनों को मैंने अनेबल किया है, मतलब रिसीव भी मैंने अनेबल किया है, एंड दैट इंटरप्ट इज कॉमनली यूज्ड बाय TI as well as RI, ठीक है, अगर TI रहेगा तो फर्स्ट इट विल कम ओवर हियर चेक इंस्ट्रक्शन कि JBTI, अगर TI 1 है तो फिर ट्रांसमिट का काम करेगा, हाँ इफ इट इज नॉट तो ये सीरियली जाएगा, अब इट इज नॉट बिकॉज ऑफ TI मींस व्हाट, पक्का RI की वजह से आए, अब आरआई को इंटरप्ट कैसे सॉल्व करते हैं अपन, अगर आरआई का इंटरप्ट 1 है मींस व्हाट, कुछ तो डेटा बफर में उसको लोड करना पड़ेगा ए में, सो आई विल जस्ट से मूव sbuf a sbuf, मतलब sbuf का डेटा मैं ए में लूंगा एंड उसके बाद CLR आ रहा है एंड देन रिटर्न फ्रॉम द इंटरप्ट। समझ में आ रहा है कि आई होप, मतलब आई नो दिस इज थोड़ा सा हेवी प्रोग्राम, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मतलब कैसे किए, ठीक है, एक्चुअली इट कुड बी बेटर इफ आई जस्ट इफ आई वुड हैव गॉन विद द बोर्ड, बट थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट इसके लिए मैंने इधर ही ले लिया पीपीटी पे, ठीक है, वन सेकंड समझो क्या कर रहे हैं, वन सेकंड समझो, ठीक है, नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू टेक डेटा फ्रॉम द पोर्ट 1, उसको पोर्ट 2 पे भेजना है, एज वेल एज सीरियली मुझे आउट भी करना है, सीरियल भी मुझे सेंड करना है, ठीक है, हाँ यहाँ पे एक्चुअली दिए क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी 11.0592 एंड बॉड रेट इज 9600, इफ इट इज सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोग्राम ना तो क्रिस्टल 11.0592 ही रहेगा, बिकॉज़ जो भी अपन ने कैलकुलेशन किया है इसके लिए किया अपन, नॉट फॉर द 22 मेगाहर्ट्ज एंड ऑल, ठीक है, सो इफ इट इज सीरियल कम्युनिकेशन यस योर क्रिस्टल इज गोइंग टू बी 11.0592 मेगाहर्ट्ज, इट कैन नॉट बी 22 और समथिंग एल्स, फाइन, या तो प्रोग्राम कैसे किया, वंस अगेन ORG00 ljump main, पहले मेन पे आएगा, ठीक है, नाउ वी हैव टू डू द सेटिंग फॉर व्हाट, मतलब पोर्ट 1 से डेटा लेना है तो पोर्ट 1 को इनपुट कर, बाद में जो भी सीरियल कम्युनिकेशन का उनका सब सेटिंग करके रख, तो मूव T1, 20 देन मूव TH1, FD S1, 50, दिस इज सीरियल कम्युनिकेशन का सेटिंग, अब नाउ वी हैव टू डू इट बाय इंटरप्ट, तो फिर इंटरप्ट में उसको अनेबल कर, सो आई एम सेइंग मूव IE, इधर यू कैन मूव दैट 8 बिट का जो भी आपको बना है, सपोज 90H, दैट इज आल्सो यू कैन मूव, अदरवाइज यू कैन जस्ट मूव इट इन बाइनरी आल्सो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड क्या किया है, तो ये को मैंने 1 किया और ये सीरियल कम्युनिकेशन का इंटरप्ट को मैंने 1 किया, फाइन, उसके बाद आई एम सेइंग सेट बिट TR1, मतलब टाइमर चालू हो गया, अब वो सीरियल कम्युनिकेशन का बॉडी वगैरह जनरेट करना सब चालू हो गया, ठीक है, देन आई एम सेइंग मूव A, पोर्ट 1, तो पोर्ट 1 से जो भी डेटा मैं A में ले रहे हैं, अब मुझे उसको सीरियली बाहर भी भेजना है और पोर्ट 2 पे भी भेजना है, सो आई एम सेइंग मूव SBUF, A, अब ये सीरियली बाहर जाना चालू हो गया, ठीक है, एंड मूव P2, A, तो पोर्ट 2 पे भी गए, एंड ये जंप बैक मतलब फिर से इधर आएगा, इधर रहेगा अभी, ठीक है, नाउ लेट्स सी, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट कि अभी ये सेंड मतलब सीरियली बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, अब इसका सीरियल मतलब व्हेनेवर इट इज ट्रांसमिटिंग, व्हाट इज दिस फंडा इज दैट जब वो सेंड कर रहे हैं, जब पूरा का पूरा एडमिट सेंड होगा तो फिर इंटरप्ट जनरेट करेगा, एंड लेट्स सपोज अभी इंटरप्ट जनरेट हुआ, सो व्हाट फिर आपने सेड यूपी विल गो टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन ORG23, इधर लिखा है कि एज ऑफ सीरियल, तो वैसे सीरियल में जाएगा, I hope you understood why it has went to the 23, because if it is the interrupt because of the serial communication, it will go to the 23, ठीक है, और उधर लिखेंगे एचएफ सीरियल, तो इट मींस कम हो हियर, नाउ अभी सीरियल कमीशन में प्रॉब्लम कैसे, वी डू नॉट नो वेदर दैट सीरियल कमीशन का इंटरप्ट इज कॉज्ड बिकॉज़ ऑफ टीआई और आरआई, बिकॉज़ मैंने दोनों को अनेबल किए हैं, दोनों को अनेबल किया, मतलब रिसीव भी मैंने अनेबल करके रखा है एसकॉन में, ठीक है, सो वी हैव टू चेक, पहले टीआई की वजह से क्या, सो आई एम चेकिंग जेबीटीआई, मतलब टीआई 1 था उसकी, उसने कॉल किया क्या, हाँ अगर टीआई ने कॉल किया तो ट्रांसमिट पे जा, अभी करना क्या, ट्रांसमिट मतलब एक बिट ट्रांसमिट हुआ, टीआई को क्लियर करना, रिटर्न मार, ठीक है, सो मतलब रिटर्न करेगा मुझे, इट विल कम ओवर हियर एंड फिर से वो ट्रांसमिट करना चालू करेगा, ए में ए का डेटा इस बॉक्स में मिलेगा लाइकवाइज, ठीक है, हाँ अगर वो टीआई की वजह से नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ आरआई, सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज दैट, सो इफ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टीआई, मतलब अगर टीआई अगर 0 है तो फिर इट विल कम ओवर हियर, सॉरी इट विल गो सीक्वेंशियली, ठीक है, बिकॉज जेबीटी मतलब जंपी बिट टीआई अगर 1 रहेगा तो फिर यहाँ पे आएगा ट्रांसमिट का काम करेगा, बट टीआई अगर 0 है, तो अगर टीआई 0 मतलब किसने कॉल किया, आरआई ने कॉल किया रहेगा,
ठीक है. सो नाउ हियर वी विल नॉट चेक कि जेबी आ रहा है करके, करने की जरूरत नहीं. अगर टी नहीं तो फिर पक्का आ रहा है नहीं किए. ठीक है. एंड इफ इट इज इंटरप्ट बिकॉज ऑफ आर आई, देन व्हाट आई विल डू इज दैट, आ रहा है मतलब रिसीव पे इंटरप्ट, मतलब एस बफर में कुछ ऑलरेडी पहले से है उसको मुझे लोड करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट मूव ए कॉमा एस बफर. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो डेटा ए में ले लिया मैंने एंड इसको आई एम सेइंग क्लियर आ रहा है. ठीक है. हाँ, इफ यू वांट टू सेव दैट ए का डेटा फिर से मुझे किधर और डालना है कि मूव 30h कॉमा ए, मतलब किसी रैम के लोकेशन में स्टोर करना, दैट यू कैन डू इट आल्सो, बिकॉज ए का डेटा मैं फिर से चेंज करने वाला हूँ. व्हाई? कैसे? मतलब ये यहाँ पे पोर्ट 1 से फिर से मैं ए में ले रहा हूँ. ठीक है. तो जो भी सीरियल का डेटा है, इफ यू टू सेव इट समवेयर एल्स, वो अभी प्रोग्राम में लिखा नहीं है, बट एक्चुअली यू कैन डू इट. सो यू कैन जस्ट सेव इट इन सम अनदर लोकेशन. ठीक है. रैम की लोकेशन में स्टोर कर सकते हो. एंड देन आई से सीएलआर आ रहा है एंड रिटर्न फ्रॉम द इंटरप्ट. रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट फिर से इधर आएगा. फिर समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? इंटरप्ट का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? हेलो, कि बाउंसर मारा? आप लोग ना ऐसा सामने रहने चाहिए थे क्लास में, ऐसा एक एक को पकड़ के पूछता ना, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मतलब सबको समझाया करके. इज दैट क्लियर? इंटरप्ट का प्रोग्रामिंग. हेलो प्रियांशु, प्रियांशु, दिशा. Yes. ये नहीं है, सावंत नहीं है, रिया सावंत. रिया आयु देयर? वृद्धि? नहीं, वृद्धि नहीं है. स्मृति, स्मृति सिंह. शी इज आल्सो नॉट देयर. Fine. So that's all regarding 8051 का syllabus, guys. I will just stop the recording.